Sri Abhishek and uh, respected our director, School of Computer Science and IT. So this is great pleasure for us that we are here in this series of Industry Connect lecture. The School of Computer Science and IT regularly from 2 or 3 months back, we have started this series of Industry Connect lectures, and students are participating equally in this series of Industry Connect lecture. So I welcome Mr. Abhishek ji in this lecture series, and Abhishek ji has a very long experience in the field of this IT, around 15-year experience in automobile and infrastructure sector in various organizations. In the field of sustainability development, he has also done many assignment, and his excellence in this work is remarkable. So again, we welcome you, sir. And this is this your experience is very much suitable as well as very much useful for our learner of different courses. MCA, MSc IT, we are running MSc Cyber Security, we are running the courses of BCA, DCA, DIT, many courses we are running, and in future we are also planning to many new courses also. So thank you once again, sir, and thank you our director, sir. So first of all, I request Jiten sir to say few words about this Industry Connect lecture. Over to Professor Jiten sir. Good morning and a very warm welcome to all of you. On behalf of School of Computer Science and IT, Uttarakhand Open University, it is my pleasure to welcome you to today's Industry Connect lecture. We are delighted to have with us our distinguished guest, Mr. Abhishek, who will be sharing his thoughts on sustainability and ESG. I'm sure his experience and insights will inspire all of us, especially our learners who are preparing to step into the professional world. My sincere appreciation goes to my entire team at the School of Computer Science and IT, whose hard work and commitment have made today's session a reality. Thank you once again for joining us, Abhishek ji, and let's look forward to an engaging and insightful session ahead. Thank you. Over to Ashutosh ji now. सर माइक ओपन नहीं है सर, आप म्यूटेड हैं. Thank you very much, sir. Thank you once again. And now I hand over to Dr. Silpa to for the further this Industry Connect lecture. So over to you, Silpa. Thank you so much, sir. Thank you, Director, sir, for introducing our department. Thank you, Ashutosh, sir, for introducing Abhishek, sir. Now I would like to welcome Abhishek, sir. Please start your lecture and please deliver insightful lecture to our students and faculty members. Thank you, sir. Right. Just 1 second, let me share. I hope PPT is visible to you. Yes, sir. PPT is visible to all of us. Good morning, one and all. I think it's a full screen also. Yes, sir. No, full screen, no. Yes, I think now it's full screen. Okay, sir. No, in case you miss my voice or something, the picture or the slide is All hanged. good, sir. All good. Interact further. You can start. Good morning, one and all. I am Abhishek. I have industry experience of 15 plus year experience of infrastructure plus
renewable sectors. I look after a profile called Sustainability and Business Excellence. Here we are today with you. It's my pleasure to this university management for you can say have a collaboration with us for starting a new concept of industry plus education synchronization. This is a very good concept. In most of the cases, we feel that the thing we study never being used in the industry. We found this kind of gap in multiple times in various experiences. So these kind of session you have planned is a very futuristic thing, and I think not all universities conduct these kind of sessions. They keep on doing with the bookish knowledge only. They don't know around the world what is going on. Is how is that relevant to your syllabus, your curriculum, your exams and all. So this is a great session. I request all students to feel blessed, proud that your management is doing these kind of sessions. Right? First of all, how much we know about sustainability? Anybody can answer to me. Feel free to speak. Unmute yourself and speak. What is sustainability? I'm in full screen. I may not be view your you can say photos and all. Sir, it's full screen, no problem. So anybody can speak from your side. Any A, B, C, any one initial idea, any guess, any kind of things we can interact accordingly. And one more question: are you comfortable in Hindi or English or mix? Sir, both the language. Fine. Use mixed language. तो हम सस्टेनेबिलिटी की परिभाषा से क्या समझते हैं? आई थिंक दैट विल क्लिक यू मच बेटर. कुछ आइडिया, थोड़ा बहुत कुछ गैस, बिकॉज A अभी वर्ड growth नया which is नहीं है. achieved without compromising with the needs of the present. वेरी गुड मिस्टर दास. Please, please unmute. You can say yes. You're right. We have to improve our services, kind of things, facilities, lifestyle, without disturbing future stock of the any kind of resources like air, water, any sources which we have. That's sustainability. Here's the definitions. A famous philosopher has given this definition: meeting the needs of the present without compromising the ability of the future generation to meet their own needs. आज हम उतना ही कंजम्पशन करें, बिजली, पानी, हवा, तेल, whatever we consume, either paper or wood or whatever we consume. We should not disturb the future needs, future generation needs. In Hindi we can dictating it. भविष्य की पीढ़ियों को अपनी अवस्था को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करना. In simple language, we should eat that much that is good for your health. We should not overeat. Simple. In terms of food, or you can say metabolism language. Clear to everyone? Yes, sir. Yes. And I think every politician, central government, PMO is using this word as of now. Even every board meeting in every company use this word. This is not a new word now. And why we need this kind of things? This is a new, some people, for few people, this is a new concept. We never had. We have heard industrial engineering, we have heard computer science, we have heard IT, we have heard electronics. But this is a new topic for us, for you people. Because in growing population, we need more and more number of resources like food, water, energy, housing, roads, material on demand. For this balancing, for this santulan, we need this kind of concept that we should not consume, intake that much kind of resources that next generation will not be able to survive. And today, in today's scenario, we can not proudly, we can comfort, can say, by confidently say that this is not a futuristic, this is today's. Today in Delhi or NCR regions, we face shortage of pure air, pure water, clean hygienic workplaces, so clean societies, energy demands, energy shortages. This problem is today we are facing, and we are working for tomorrow. मतलब आज हमें face नहीं करना चाहिए था, because somewhere past some mistakes has been done. That's why we are facing today. But if we do same mistake again today, then future will be of risk, high risk.
as of now, because you all know that in October, November, December, Jan, Feb, these Delhi people feel shortage of healthy air. And then NGT puts up comes in picture, then they put this foundation on industries, vehicle movement, grab 1, grab 2, grab 3, 4s and all. Stoppage of diesel buses and all. So that people can breathe, people can survive. Now, there is a similar concept, ESG and sustainability. There are two concepts which can be interchangeably used. Both are similar but not same. If we talk about ESG is sort of a framework which understand the business, how their risks are there in the business. In terms of sustainability, it's a broader term doing same thing for longer term, just like you can say short-term goals and long-term goals. In terms of focus, we talk about business opportunities also in terms of ESG, but in sustainability, we more talk about nature inclined things. In terms of ESG, audience are primarily investors. I hope you all know how the business runs. There are two kind of doing the business. First is family business. My father has this much kind of money. I am the son. I'm running this business, family business. You can say, or partnership business. Second type of doing business is investor-based business. I have the money. I don't want to do the business. I give it to somebody else. He will make my 100 rupees to 200 rupees. But on which promises I give money to somebody that you take my 100 rupees and you start doing business? Can somebody answer to me? On which promises or which commitment or which confidence I give my 100 rupees as I'm investor to the industry people that he will give me 200 after some time or 2 year or one, that kind of things. Help me with your answers. Answer may be wrong, not an issue, but you need to speak. Everybody we once, then only I will know able to speak well to make you understand well. We have a good frequency. किस भरोसे पे मैं पैसा दूंगा कि सामने वाला बंदा मुझे 1.25 गुना या 2 गुना या कुछ भी मतलब 100 का 120 करेगा 130 करके देगा? एनीबडी कैन आंसर? वो भरोसा वो क्या चीज होगी? Yes, sir. यस यस अभिषेक प्लीज. मैं किसी भरोसे पे पैसा दूंगा ना सामने वाली कंपनी को, जी जी इन्वेस्टर होता हूं तो. चलो मैं बताता हूँ. मैं उसके प्रोसेस को पता करूंगा कि उसके प्रोसेस अच्छे हैं, क्या वो कंपनी सोसाइटी के लिए भी काम कर रही है, क्या वो किसी लीगल कंपनी किसी लीगल कैसे कॉन्फ्लिक्ट में नहीं फंसी हुई है, मार्केट में उसकी इमेज क्या है, वो इन्वेस्टर्स को या स्टेक शेयर होल्डर को अच्छे से टाइम पे पैसा दे रही है, जो भी है जो रेगुलेशंस फॉलो कर रही है. दीज काइंड ऑफ थिंग्स विच मेक डेवलप फेथ ऑफ दैट कंपनी ऑन मी, दैट देन ओनली आई कैन गिव द मनी. क्या आप अपनी जेब से 100 रुपए किसी को दोगे अननोन को, या आप जानते हो कि इसने कुछ क्राइम कर रखा है, उसको नहीं दोगे ना? Yes, sir. सेम मैनर, सेम अप्लाई फॉर द कंपनीज आल्सो. नाउ एप्लीकेशन. ESG यूज होता है इन फाइनेंस रिस्क मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट डिस्क्लोजर. मींस हमें जो रिस्क कितने प्रकार के होते हैं? रिस्क होता है जैसे कस्टमर से रिस्क क्या है, दूसरा फाइनेंशियल रिस्क क्या है, पैसे में क्या कैसा यूज हो रहा है, कहाँ यूज हो रहा है, किस पर्पज के लिए यूज हो रहा है. कस्टमर, फाइनेंशियल, उसके बाद लीगल. कल को हम कोई काम कर रहे हैं, आज कोई रूल नहीं है, कल को रूल आ गया तो हम कहाँ जाएंगे? दैट इज लीगल रिस्क. सोसाइटी रिस्क, हम काम कर रहे हैं, हमारे काम से सोसाइटी इफेक्ट हो रही है इन जी पॉजिटिव जी नेगेटिव मैनर. देन सोसाइटी कैन क्रिएट ऑब्जेक्शंस दैट ये कंपनी बंद करो या कि ये प्लांट को कुछ चेंज करो, प्रोसेस चेंज करो, हम कोई वाटर रिलीज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, दो भी है प्लस माइनस बट एवरीथिंग. In that cases, its application only where risks are being managed. Now is the purpose. जो ESG है that help us to understand financial and non financial decision making. हमारी रिपोर्ट जो बनेगी सस्टेनेबिलिटी की, हम उस रिपोर्ट से आने वाले टाइम के डिसीजन ले पाएंगे. That will help as a guiding tool, you can say torch bearer for the future decisions. And third is, last is scope, narrow. That is focus on E, S and G. Environment, social and governance.
In terms of sustainability, we do all these things in a similar manner, not same manner, but in a bigger picture, जी जी right? When these things are similar. And ESG stands for environment, social, and governance. Environment stands for the Vatavaran we use, the Paryavaran we use. Social means the society where we work, how we live, who are the end stakeholders. हमें प्रोडक्ट किसको बेच रहे हैं, प्रोडक्ट बनने के बाद कहाँ जाएगा, बनने के बाद कैसे यूज होगा. अभिषेक जी, प्लीज स्टॉप टिक मार्किंग द थिंग्स. आई थिंक यू आर डूइंग समथिंग. Adarsh, uh, please अभिषेक. don't do this on the screen. Adarsh Patel. Abhishek, I think Abhishek. No, not Abhishek. Something someone is doing. Means overall we have to do that kind of business in that manner that should not hurt other future generation, current and including current also, not only current, not only futures. So we should use current and future generations. Our action should not harm anybody. That is sustainability in terms of industrial language. हमारे धर्म जो है, हमारे जो रिलीजन्स है, हमारी फैमिली वैल्यूज हमें क्या कहती हैं, हमें किसी का बुरा नहीं करना. दैट इज एज ए ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू. ऐसी सस्टेनेबिलिटी कंपनी के लिए, जब यही बात जब सस्टेन कंपनी के लिए कोई बोलता है कि हमें किसी का बुरा नहीं करना है, हमें अच्छे से अपने फाइनेंस यूज करना है, इन्वायरमेंट का मिस यूज नहीं करना है, हमें अपना सारे कंट्री के जो भी लैंड ऑफ रूल्स हैं फॉलो करने हैं, वही इसी का नाम सस्टेनेबिलिटी है कि भविष्य के लिए. ये होता कैसे कंपनी में, हम जैसे एग्जाम स्टूडेंट जैसे एग्जाम देते हैं, पहले डिसाइड करते हैं कि एडमिशन कहाँ लेना है, एडमिशन के फिर एडमिशन लेते हैं, एडमिशन के बाद पढ़ाई करते हैं, देन यू गाइस डू मिड टर्म्स और सेमेस्टर एग्जाम्स, देन यू गो फॉर फाइनल एग्जाम्स. फिर एग्जाम देते हैं, एग्जाम में आपको अटेम्प्ट करते हो, रिपोर्ट जाती है आपकी, रिपोर्ट में एग्जाम अटेम्प्ट करते हो, राइट अप, देन यू गेट नंबर्स एंड ऑल, देन अगेन यू गो फॉर नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट ईयर क्लासेस. आई थिंक सेकंड ईयर टू थर्ड ईयर टू फोर्थ ईयर. इन सिमिलर पैटर्न, दिस इज जर्नी. ये दिस इज नॉट वन टाइम जर्नी कि आपने कर लिया और एक बार हो गया. ईयर ऑन ईयर organization understands that what is the current scenario, how we are doing the things, how we are making our processes, how we are making products. हम कुछ चीज बना रहे हैं तो कैसे बना रहे हैं, हम पुल बना रहे हैं तो कैसे बना रहे हैं, उसमें क्या मटेरियल यूज हो रहा है, कैसे हमारे प्रोसेसेस हैं, हु आर द पीपल इन्वॉल्व, सोसाइटी से हम कैसे कनेक्ट हैं. देन then we go for data collection, baselining, just like education we go for studies, tool material, notes, tuitions and everything. ऐसे ही हम फिर डाटा कलेक्शन करते हैं कि हम किस चीज में कहां पर हैं, वेयर आर वी एज ऑन डेट. वंस डाटा इज कलेक्टेड, देन वी गो फॉर अ लॉन्च ऑफ सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव्स. मींस हम अपनी बेस लाइन को, मान लो हम जीडीपी 7 पे, एग्जांपल इन कंट्री लैंग्वेज, एंड हम 7 पे हैं, विल गो फॉर 7.2 जीडीपी नेक्स्ट ईयर. सेम फॉर द कंपनी, हम इस साल इतना कार्बन हवा में रिलीज कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर वी आर गोइंग टू रिड्यूस इट बाय दिस मच, 10%, 5% कम करेंगे. उसके बाद हम उसके प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं हर पूरी कंपनी में. दिस फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज नॉट अ फंक्शन बाइस काइंड ऑफ प्रोफाइल कि आपका क्वालिटी है तो क्वालिटी से ही बात करेगा. हमें ये जो फंक्शंस होता है पूरे कंपनी के हर कॉर्नर से लिंक्ड है. अभी कुछ लोगों को, आपको भी लगता होगा यार हम कंप्यूटर साइंस में कर रहे हैं, हमारा इन्वायरमेंट से क्या लेना देना है. हम अगर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं, हमारे इन्वायरमेंट से क्या करना है. दिस इज ओनली एप्लीकेबल टू बीएससी इन्वायरमेंट साइंस और एमएससी इन्वायरमेंट साइंस. अभी होगा एक क्वेश्चन, ही कुछ लोगों के मन में होगा कि दिस इज हाउ दिस ट्रेनिंग इज रिलेवेंट टू अस और नॉन इन्वायरमेंट पीपल. दैट आई विल आंसर इन द ऑलमोस्ट इन द एंड. ठीक है, एक बार डाटा कलेक्ट हो गया, देन वी आर एबल टू नो कि वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो. वेयर वी आर मींस दैट इज बेसलाइन, वेयर वी वांट टू गो इज ए टारगेट. फिर हम प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं कि हम इस प्रोजेक्ट की, इस आइटम को, इस पैरामीटर को हमें यहाँ से इम्प्रूव करके यहाँ तक लेके जाना है. प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, फिर प्रोजेक्ट लेके जो प्रोग्रेस आती है उस पर हम रिपोर्ट बनाते हैं. जैसे हम प्री बोर्ड करते हैं, सेमेस्टर्स करते हैं, मिड टर्म करते हैं, यूनिट टेस्ट करते हैं, उसके बाद हम फाइनल एग्जाम के लिए रेडी होते हैं. ऐसा ही सेम फॉर एग्जाम. देन वी अटेम्प्ट एग्जाम, हियर वी रिपोर्ट द सबमिट द रिपोर्ट. एक 70-80 पेजेस की, या कैन बी मोर देन दैट आल्सो, एक रिपोर्ट बनती है. उसमें सब पूरी कंपनी का पूरा एंड टू एंड यू कैन से बाइबल होता है, कंप्लीट
कब शुरू हुआ, कब कंपनी में कितने कितने का टर्न ओवर, हाउ मच दैट इज दैट, एंड हाउ वी आर डूइंग, आवर प्रोसेस क्या है, हम गवर्नमेंट से कैसे बात करते हैं, हम सोसाइटी से कैसे बात करते हैं, हम एम्प्लॉय का ख्याल कैसे रखते हैं, एवरीथिंग इन दैट। उसके कुछ जैसे आपका सिलेबस होता है, चैप्टर्स होते हैं, सब चैप्टर्स होते हैं, ऐसे ही सिलेबस होता है उसका पूरा। देन वी सबमिट दैट रिपोर्ट टू रेटिंग एजेंसीज। उसके बाद रेटिंग एजेंसीज डू रेटिंग ऑफ द कंपनी। इस कंपनी की रिपोर्ट हमने पढ़ के हमने इसको इंश्योर किया कि इन टर्म्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी इसकी फ्यूचर प्रोबेबिलिटी या फ्यूचर सेलिंग कितनी है, 70% है, 80% है, 90% है, 71% है, दैट काइंड ऑफ थिंग्स। देन अगेन द साइकिल विल मूव ऑन, सेम ईयरली साइकिल्स, just like simple like your exams, you take admission and all, same for the company. Then next year क्या होगा, the leftmost you can say light green circle is a first year, then again go to the bold green circle, sustainability. Next year this is not a first year, then we go for a maturity improvement. हमने इस साल 60% मार्क्स पाए हैं सस्टेनेबिलिटी में, नेक्स्ट ईयर गो फॉर 65 और 70 और 75, ये फॉर नेक्स्ट ईयर। फर्स्ट इज स्टार्ट जर्नी, देन इट गो फॉर इंप्रूवमेंट जर्नी। एक बार हमारा खाता खुल चुका है, देन विल गो फॉर इंटरेस्ट इन लाइक बैंक अकाउंट, देन ईयर ऑन ईयर डाटा कलेक्शन, देन YoY स्टैंड फॉर ईयर ऑन ईयर, इनिशिएटिव विल इम्प्रूव, इनिशिएटिव का स्कोप इम्प्रूव होगा। फर्स्ट ईयर हमने मान लो अगर 5% स्टार्ट किया है, तो नेक्स्ट ईयर विल गो फॉर 7% इम्प्रूवमेंट्स। देन रिपोर्टिंग होगा, फिर रिपोर्टिंग में जब हम फर्स्ट टाइम स्टार्ट करते हैं, देन वी हैव अ सिंगल डाटा पॉइंट दैट वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो, दैट्स ऑल, बेसलाइन एंड टारगेट। जब सेकंड ईयर पे आएंगे तो हमारे पास क्या होगा, बेसलाइन होगा, टारगेट होगा और 2 साल का डाटा भी होगा। तो then data will define us that are we going right directions, wrong directions, or we need some improvements, and how we are placed in terms of global world. हम हमारी कंपटीटर कंपनी से के साथ अगर हम कंपेयर करते हैं तो कहाँ पर लाई करते हैं, आई वी ऑन थर्ड पोजिशन, फिफ्थ पोजिशन, एट पोजिशन, वेयर वी आर। ये इसका इकोसिस्टम है ESG का। ESG इसमें आपका रेटिंग सिस्टम्स भी आता है। रेटिंग कंपनी को रेट कौन करता है, कंसल्ट कौन करता है, कंसल्टिंग मीन्स who are agencies who guide to the company that you should do this is just like a, you can say coaching institutes kind of things. And then it called rating they are different framework, just like your syllabus like a CBSE or you can say state boards or open universities, which syllabus we are following, how we are following. And then we go for a रेटिंग एजेंसी, रिपोर्टिंग एजेंसी, टू हम किसको रिपोर्ट करते हैं, रिपोर्ट सबमिट कहाँ करते हैं। देन वी गो फॉर लेट मी कवर वन बाय डेवलपमेंट फ्रेमवर्क, कि हम रिपोर्ट बनाने किस पैटर्न से। सेकंड इज स्टैंडर्ड कौन सा फॉलो करना है। थर्ड इज एश्योरेंस, एक बार हमने कर दिया, हमने किया कि हमारा कार्बन हम 10 से 8 लेके आए हैं, 8 kg CO2 हम कम पे लेके आए हैं। हु विल अश्योर दैट, हम तो बोल रहे हैं but nobody will understand that part. Somebody, third party, agencies, auditor will assure that their processes are right. They have reduced their carbon from 10 to 8. Then for comparison, what we want, डाटा प्रोवाइडर्स। हमें दूसरी कंपनी का डाटा हमारे पास नहीं होता है, मार्केट का डाटा नहीं होता कि मार्केट किस तरफ जा रही है, मार्केट में बेस्ट क्या है। दे आर डाटा प्रोवाइडर्स लाइक ब्लूमबर्ग, MSCL, थॉमसन राइटर्स, दीज आर द डाटा प्रोवाइडर्स। Then it come to data providers ESG exclusive. They are specifically with respect to data in terms of competitive rating. हमें specifically इस इंडस्ट्री का, इस सेक्टर का डाटा चाहिए तो वो और प्रिसाइज हो जाता है डाटा। Then it come to voting and reporting. Rating agencies हैं, they will rate us and they will give investors. And based on this kind of system, the चक्रव्यूह जो सारा है ये किस चीज का है, so that we get a good score, we get money. I hope you all know about CIBIL score. Anybody who don't know what CIBIL score? Maybe a students or may not be knowing. But once you come in professional life, you are going to buy your bikes, cars, houses. Then you will not need one kind of score. CIBIL score means आपकी पैसा रिटर्न करने की कैपेबिलिटी कितनी है, दैट इज CIBIL स्कोर। आप जैसे जैसे आप इंडस्ट्री पढ़ाई के बाद एजुकेशन सेक्टर में आए, सॉरी कॉर्पोरेट सेक्टर में आएंगे, you will buy money from say
मनी फ्रॉम समबडी, यू बाय थिंग्स, यू रिपे द लोन, उससे ऑटोमेटिकली आपका एक स्कोर जनरेट होता रहता है ऑनलाइन। आपको उसमें कुछ नहीं करना है। आप बैंक से लोन लोगे वापस दोगे तो आपका सिविल स्कोर अच्छा होगा। बैंक से लोन लेके वापस नहीं दोगे, आपका सिविल स्कोर डाउन जाएगा। कि कहीं ना कहीं इसकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी टू पे बैक टू द बैंक और सोसाइटी इज बिट लेसर। Now there are three pillars of sustainability, three segments, you can say chapters, three units, three subheads, whatever you call it. First is environment sustainability. हमें इसमें इंश्योर करना है कि our actions, industry actions, as a corporate, as an individual, should not harm the environment. Name is environment sustainability. Key goals क्या है? Reduce pollution and waste, conserve biodiversity, manage culture resources responsibility, then combat climate change. एग्जाम्पल्स आर रिन्यूएबल एनर्जी, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। कैसे करेंगे एक्शंस की पॉइंट ऑफ व्यू से? हमें अपनी थर्मल एनर्जी से मूव होकर रिन्यूएबल में काम करना है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करनी है, सो दैट वी कैन रिड्यूस लेस कंजम्पशन ऑफ वाटर, वेस्ट कम करना है, रिफॉरेस्टेशन करना है। दीज आर एक्शनेबल पॉइंट्स इन दिस। सेकेंड इज सोशल सस्टेनेबिलिटी, मीन्स हमें इंश्योर करना है कि हम जो मैन पावर या एम्प्लॉइज हायर करें, दे शुड गिव फेयर प्राइसेस, फेयर फीस, नॉट फीस इन सैलरी। प्रमोट एक्सेस टू एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, हमें उनको इंश्योर करना है कि सोसाइटी के को अच्छी एजुकेशन के लिए उनका अप्रोच हो, उनके आसपास हो, राइट एजुकेशन मिले, हेल्थ केयर अच्छा मिले, बेसिक जो ह्यूमनिटीज है वो मिले। थर्ड इज प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स, हमारे और उनके जो राइट्स हैं, एबल टू स्पीक वेल, राइट वेल, डू वेल, ऑन टाइम, गेटिंग सैलरी ऑन टाइम, दैट शुड बी फुलफिल्ड। फोस्टर इंक्लूसिव सोसाइटीज मीन्स हमें सोसाइटी में सभी कम्युनिटीज को, सभी यू कैन से जेंडर्स को एक साथ लेके चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक जेंडर मूव हो रहा है, एक कम्युनिटी मूव हो रही है, दैट इज नॉट सस्टेनेबल। एग्जाम्पल के लिए क्या करेंगे हम? कम्युनिटी डेवलपमेंट प्लान, आसपास की सोसाइटी में जो कंपनी के पास है, कंपनी से थोड़ा बहुत दूर है, उसके आसपास हम कोशिश करेंगे जो हमारी एजुकेशन है, सिस्टम्स हैं, जो हेल्थ बीइंग है, हेल्थ केयर है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, सोशल डेवलपमेंट है, वो ठीक रहे। एंड डाइवर्सिटी इंक्लूजन, डाइवर्सिटी मीन्स not a one gender based, it can all, you can say sex of the society are covered, male and female are covered, not only one male is covered, one female is covered. Inclusive means all parts, and all anybody who have a special abilities also should be given some jobs, societies, he should be able to earn the bread. Third is affordable housing, means ऐसा ना हो कि हम should create a multi-story buildings again and again, and the people who are less economical, you can say bandwidth, they are not getting housing. They live in slums, they live in jhopris and all unhygienic conditions. And health equity. Everybody should have access to the good health conditions like basic cleaning, basic health structure, fever and all. He should be able to get good medicines, good society care, consultations. Now the third leg is economic sustainability. Economic means financial, पैसा. This ensure long term economic growth, कि लंबे समय के लिए आपको पैसे का सही यूज करना आना चाहिए, and we should not use the give negative impact to the environment and society for our money making business. Support क्या है? Support job creation and fair wages. आपको अपने सोसाइटी के अंदर जॉब क्रिएट करनी है, वेजेस जो है, वेजेस मीन्स सैलरीज शुड बी फेयर, जो डिजर्विंग है, कैटेगरी है, एक सेगमेंट है, उसको उतना एटलीस्ट मिनिमम वेयर होना चाहिए। देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड मिनिमम वेजेस कंसेप्ट व्हिच इज लीगल। गवर्नमेंट ने हर स्टेट के अंदर एक मिनिमम सैलरी फिक्स कर रखी है। नो कंपनी इन दैट स्टेट कैन गिव लेसर देन दैट, मीन्स आपको उतना तो देना ही देना है। आप अपर दोगे तो देन यू कैन पीपल विल कम टू योर कंपनी, अगर लेस, बट यू कैन नॉट गिव लेस, दिस इज लीगल रिक्वायरमेंट। Legal requirements are the requirements which nobody can bypass in that land or that state or that country. Second is promote ethical business practices. हम जो करें सही तरीके से करें, कोई बाईपास, कोई you can say सिफारिश या some kind of अनफेयर ना करें, बायसनेस ना करें। थर्ड इज encourage innovation and long term profitability.
हम अपने कार्य क्षेत्र में, अपने वर्क्स में, प्रैक्टिसेस में इम्प्रूवमेंट लाते रहें। ऐसा नहीं कि हम जो 10 साल पहले जिस तरीके से हम कर रहे हैं, विल कीप ऑन डूइंग सेम थिंग इन द सेम मैनर, देन इज अ वेस्ट। वी शुड कीप, दुनिया का दस्तूर है कि हमें इम्प्रूव करते रहना पड़ेगा, हमें लाइफस्टाइल को, तौर तरीकों को, सोसाइटी को, एजुकेशन लेवल को। देन ओनली वी विल टू सर्वाइव वेल। फोर्थ इज बैलेंस प्रॉफिट विद एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी। हमारा जो एम है इंडस्ट्री खोलने का, मीन्स वी हैव टू अर्न मनी, बट दैट शुड नॉट बी डायल्यूटेड विद द बैड इम्पैक्ट टू एनवायरमेंट एंड सोशल सस्टेनेबिलिटी। Along with earning money, you should take care of environment also and society also. Then only development will be full inclusive. Third, so examples are circular economy, just like circular economy. We whatever you use, पैसा जनरेट, पैसे का फ्लो होना चाहिए। पैसा शुड नॉट स्टॉप विद वन पर्सन, वन सोसाइटी और वन कंपनी। कीप ऑन मूविंग। रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टिंग, हमें कहीं इन्वेस्ट करना है, कंपनी को अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट करना है, दैट शुड हैव invested in a good company, good another company which should have good rating, reporting kind of thing, good system। हाँ, अगर हम अपना पैसा किसी डेड कंपनी में जो है इन्वेस्ट करेंगे तो क्या होगा, पैसा वेस्ट हो जाएगा। सस्टेनेबल सप्लाई चेन, हम कहाँ से मटेरियल ले रहे हैं, रॉ मटेरियल कहाँ से ले रहे हैं, उसके बाद हमारे कंपोनेंट कहाँ से बन रहे हैं, उसके बाद हम वो असेंबल कहाँ पे कर रहे हैं, उसके बाद फाइनल गाड़ी कहाँ बन रही है। ऑल एंड टू एंड, स्टार्ट फ्रॉम यू कैन से मटेरियल, you can say digging from the earth to the metal and used by end consumer then disposing of। मतलब एक कार हम लेते, हम स्टील कैसे निकाल रहे हैं, देन स्टील के बाद उसकी प्रोसेसिंग कैसे हो रही है, कलेक्शन कैसे हो रहा है, उसके बाद शीट बन रही है, शीट से वो एक कार कंपोनेंट बन रहा है, कंपोनेंट से गाड़ी में कब आ रहा है, गाड़ी में आने के बाद एंड यूजर कैसे गाड़ी यूज कर रहा है, यूजर के यूज करने के बाद एंड यूजर स्क्रैप कैसे कर रहा है। मीन्स जन्म से मृत्यु तक का जो सिस्टम है, सप्लाई चेन मीन्स एंड टू एंड। पार्ट का, पार्ट के हिस्से के रॉ मटेरियल का बनना टू पार्ट के हिस्से के रॉ मटेरियल का डिस्पोज ऑफ होना। ग्रीन जॉब, वी शुड वर्क ऑन ग्रीन जॉब, पीपल शुड नो कि व्हाट सस्टेनेबिलिटी इज, हाउ इट इज प्रमोटेड, व्हाट आर काइंड ऑफ 10 12 15 काइंड ऑफ थिंग्स टू बी डन इन सस्टेनेबिलिटी। करना क्या है, क्या कैसे करना पता होना चाहिए। जैसे आप लोग जैसे अभी बीएससी इन्वायरमेंट वाले होंगे, आई एम नॉट श्योर अबाउट द कोर्स, एमएससी इन्वायरमेंट होगा, दिस पीपल विल क्रिएट ग्रीन जॉब्स, एक सेक्टर बनेगा। ठीक है, अब बात आती है एनवायरमेंट्स की, ये क्लियर है। These are kind of things we have to do in case of, there are many things, these are not only listed numbers, these are few examples। एग्जाम्पल क्या है, कंपनी रिड्यूसिंग इट्स फुटप्रिंट्स बाय स्विचिंग टू ग्रीन एनर्जी। अगर हम कंपनी में जो पावर यूज करते हैं, इफ यू यूज दैट सोलर एनर्जी जनरेटेड पावर, देन इट वी आर रिड्यूसिंग लेस कार्बन टू द सोसाइटी, लेस कार्बन टू द एनवायरमेंट। Same for social, these are second, you can say same concept in different slide, different languages, different, so that you can get multiple examples। क्योंकि आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, हमें कंसेप्ट समझ में आ गया, ESG होता क्या, बट करें क्या, तो ये करें क्या डूइंग वाला पार्ट है कि इश्यूज क्या है, कैसे करें, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। हमें अगर कंसेप्ट समझ में आ जाता है कि ये कंसेप्ट है, बट एक्शनेबल पार्ट समझ में नहीं आता तो क्या करेंगे, दैट इज नॉट गुड एजुकेशन काइंड ऑफ थिंग्स। तो ये इश्यूज हैं सोसाइटी के अंदर। सोशल इश्यूज की बात करें, लेबर प्रैक्टिस अनफेयर है, एम्प्लॉय वेलबींग अनफेयर है, डाइवर्सिटी नहीं है। आप देखो एक कंपनी के अंदर 70-80% यू गेट मेल एम्प्लॉइज, वो अनफेयर है। डाइवर्सिटी, पीपल्स, द पीपल विद यू कैन से स्पेशल एबिलिटीज आर नॉट कवर्ड, कैप्चर्ड और हायर्ड फॉर द वर्क प्लेसेज। ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है, कम्युनिटी एंगेजमेंट नहीं है। आपके आसपास से कम्युनिटी से आसपास से जो सिटीज है, विलेजेस से कोई कम्युनिटी का कोई कनेक्शन नहीं, कंपनी का कस्टमर प्राइवेसी कम है, डाटा प्रोटेक्शन कम है, प्रोडक्ट सेफ्टी के इश्यूज होते हैं। देन गवर्नेंस में बोर्ड स्ट्रक्चर होना चाहिए हमें, उसके मेंबर्स होने चाहिए। हम कभी सुनते हैं कि कोटक, एबीसी बैंक, नाम नहीं लूंगा मैं, किसी बैंक का कुछ इश्यूज होते हैं तो क्या होता है, बैंक का फेथ कस्टमर के ऊपर कैसा जाता है। क्या कोई कस्टमर ऐसे अनरिलायबल बैंक में अपने पैसे जमा करेगा, ज्वेलरी जमा करेगा, नहीं करेगा ना।
तो वो दैट इज मार्केट इमेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन उसके बाद उसके जो बिजनेस प्रैक्टिसेस वो ठीक ठाक होनी चाहिए, गवर्नमेंट के लॉज ब्रेक ना करें, गवर्नमेंट के लॉज ब्रेक ना करें, सोसाइटी के लॉज ब्रेक ना करें। ये शेयर होल्डर को टाइम पे अपना जो प्रॉफिट शेयर आता है वो शेयर करें, रिस्क मैनेजमेंट करें, आने वाले टाइम के लिए तैयार हो। अभी लास्ट कोरोना के टाइम पे ये बताइए 10 में से कितनी कंपनियां कोलैप्स हो गई, एग्जांपल 10 से मैं फिगर ले रहा हूँ, रैंडम फिगर है, 10 में से कितनी कंपनियां जो थी सरवाइव कर पाई थी? आंसर मी, एनीबडी कैन आंसर, नो नीड टू वरी, क्योंकि गलत होगा सही होगा फर्स्ट ऑफ ऑल तो। No idea, sir. नहीं, टेंटेटिव यू कैन जस्ट डाटा Five जो। or six? हम्म, एनीबडी कैन गेस आल्सो। एग्जाम्पल 10 में से चलो ठीक है, 7 कंपनी सर्वाइव कर, वेर आर द 3 कंपनी जो सर्वाइव नहीं कर पाई? क्यों? दे हैवंट प्लान फॉर द रिस्क मैनेजमेंट, की आने वाले समय में अगर रिस्क आता है तो क्या होगा। वो अगर रिस्क आता है तो क्या होगा। एक आपने नाम सुना हो गरवारे कंपनी का, जो गाड़ी कारों के लिए सन फिल्म बनाती है, ब्लैक फिल्म जो उसको बोलते हैं। अचानक से गवर्नमेंट का लॉ आ गया कि जब से निर्भया वाला केस हुआ था कि कारों में ब्लैक फिल्म लगाना अलाउड नहीं है, तो क्या हुआ उस कंपनी का। हाउ द कंपनी विल आंसर टू देयर एम्प्लॉइज स्टेक होल्डर्स की भैया हमने पहले ही सोचा सोचा ही नहीं था। अगर गवर्नमेंट कल को चीज़, हम एक्स चीज़ बेच रहे हैं, हम ये रिमोट बना रहे हैं, कल को गवर्नमेंट रिमोट बंद कर देती है एग्जाम्पल, या कुछ उसमें ला आ जाते हैं, तो हमें क्या, हमारी ऑल हम कंपनी बंद कर देंगे? नहीं कर पाएंगे ना। हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, हमारे फैमिलीज हमारे साथ हमारी साथ पल रही हैं, लाइफ लाइन्स हैं, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने अपने बच्चों के एडमिशन करवा रखे हैं, कॉलेज में उनकी फीस जा रही है, बैंक लोन ले रखा है, होम लोन ले रखा है। तो कंपनीज को अपने आने वाले रिस्क का थोड़ा सा एटलीस्ट आइडिया हो, और उस रिस्क को अपने माइंड में रख के ही काम करें कि कल को ऐसा होता है तो हाउ हाउ दे विल सर्वाइव, व्हाट आर द अल्टरनेटिव रूट्स। एंड कभी भी एक प्रोडक्ट के ऊपर जाना है, एक प्रोडक्ट, सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाना इज नॉट अ गुड रिकमेंडेड यू कैन से स्ट्रेटेजी। अब उनकी अगर गाड़ी की फिल्म में इश्यू आता है तो गाड़ी फिल्म गवर्नमेंट ने बंद कर दी फ्रॉम नेक्स्ट डे, तो अगर गवर्नमेंट ने बंद कर दी तो नोबडी विल बाय दैट कार ग्लास फिल्म, देन हाउ दे विल सर्वाइव। So it's advisable to have a diverse portfolio of the products and services, not only one. This is one strategy. There can be any number of things. ठीक है। अब तक कुछ सवाल, कुछ क्वेश्चन, कुछ क्वेरी है तो बताइए। We are giving you 1-2 minutes का, so that we can you can absorb well, you can understand well. Now open to you for two, you can say interim break. कोई भी पार्टिसिपेंट कुछ नहीं बोल रहा है। Sir, no questions from their side. शायद या तो कुछ स्ट्राइक नहीं हो रहा या बिल्कुल ऊपर से जा रहा है, इधर अंदर जाना चाहिए। No, no, sir. जा रहा है. ठीक है। अब ESG, ESG इन्वेस्टिंग में यूज कैसे होता है, जैसा मैंने शुरुआत में बताया था कि कोई भी कंपनी अगर होती है तो मोस्टली केसेस में दो तीन कंपनियां बनती हैं। पैसा किसी का, कंसेप्ट किसी का, आइडिया किसी का। मान लो आपके बंदे उत्तराखंड यूनिवर्सिटी से किसी बंदे के पास आइडिया है कि मैं ऐसा करके चावल बनाऊंगा, चावल से ये डिश बनेगी, उसके पास आइडिया है बट उसके पास पैसा नहीं है। आइडिया मीन्स कंसेप्ट है, वो उस कंसेप्ट को लेके किसी रिच पार्टी, मैं बहुत कन्वेंशनल वे बता रहा हूँ आपको, ताकि सो दैट यू कैन गेट अ क्लिक, यू विल गो टू सम रिच पर्सन दैट ब्रो, दिस इज आई हैव दिस आइडिया, if you make rice in this manner you will get this kind of this, and this dish is very demanding in Indian market, or you can say consume abroad market, दुबई में खूब बिकेगा, बट मेरे पास पैसा नहीं है। that the rich firm, or you can say individual, or a party, you can say investor firms will say कि हाँ I can give you the money, बट मुझे 10 का 12 चाहिएगा। तो इन्वेस्ट जब करेगा जब सामने वाले का, आपके स्टूडेंट का जो आइडिया होगा वो थोड़ा सा ट्रस्टवर्थी होगा, उसमें लगेगा कि लॉजिकल है,
स्कोप है, उसने वो दिखाएगा पूरा, मैंने स्टडी किया है, मैंने अपनी एमएससी की स्टडी में रिसर्च किया था, देखो दुबई में ये लोग ये आइटम, ये जो फूड आइटम है यहाँ के बंदे बहुत खाते हैं, कि डिमांडिंग है और इतना ऑलरेडी बिक भी रहा है। तभी वो कन्विंस कर पाया कि भैया मैं जो प्रोडक्ट बना बता रहा हूँ सर, आप मुझे इस बात के लिए पैसा दीजिए, मैं फैक्ट्री लगाऊंगा और आपको मैं 10 का 12 दूंगा 1 साल के अंदर, रिटर्न करूंगा। देन ओनली ही विल इन्वेस्ट इन दैट स्टूडेंट who will having the concept of rice dish, whatever new dish में है, दैट इज इन्वेस्टिंग। तो वो जो इमेज है, जो इंट्रैक्शंस है, वो जो सर्वे रिपोर्ट बताएगा कि मैंने दुबई में सर्वे किया है, इस पर बिकने वाला प्रोडक्ट है, इसकी काफी फॉर एग्जाम्पल अभी मखाने की बात कर लीजिएगा आप। मखाना आई थिंक बिहार से किसी एक्स रेट में आता है, वो जब बिकता है तो इंडिया में बिकता है 10x रेट पे और दुबई में बिकता है 20x रेट पे। बट उस बंदे के पास तो सिर्फ कंसेप्ट है, पैसा नहीं है। Then he'll go to some industrialist person कि I have this concept, I give you the money, I will give you the factory and we can jointly do this. They work on some share basis or some 50-50 share basis, whatever ratio they have, उसी में बात करेंगे। तो इसलिए ये ESG का कंसेप्ट है कि हम, ये ESG एक इंक्लूसिव पैरामीटर है, स्कोर है। अगर आपका स्कोर अच्छा होगा तो आपको पैसा मिलेगा, स्कोर अगर वीक होगा तो पैसा नहीं मिलेगा, अगर पैसा मिलेगा तो हायर रेट पे मिलेगा। Then bank also give you the loan on different based on your सिविल स्कोर। अगर आपका सिविल स्कोर अगर मान लो 8 से ऊपर है, आई थिंक 800 से प्लस के ऊपर आपको हाउसफुल मिलता है 8.5 पे। अगर आपका सिविल स्कोर 600 के आसपास है तो आपको मिलेगा शायद 10 के आसपास से, मतलब फिगर में वेरी, बट इट्स ए कंसेप्चुअल। जितना आपका इमेज अच्छा होगा लोन आपको रेट अच्छे रेट मिलेगा, जितना आपका इमेज डाउन होगा तो आपको लोन रेट उतना बढ़ जाएगा, क्योंकि बैंक रिस्क कर ही नहीं करेगा कभी भी, बैंक को अपना प्रॉफिट से मतलब है। नाउ दिस इन्वेस्टिंग नेगेटिव इन्वेस्ट स्क्रीनिंग, एक्सक्लूड हार्मफुल इंडस्ट्रीज। ओके, अच्छा दूसरी बात, हर कंपनी, हर हर बैंक या हर इन्वेस्टिंग एजेंसी हर कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करती है। उनके भी कुछ अपने प्रिंसिपल्स है कि मुझे सिर्फ सामाजिक कंपनी इन्वेस्ट करना है, मुझे तंबाकू में इन्वेस्ट नहीं करना है, मुझे शराब में इन्वेस्ट नहीं करना है, मुझे कोयला की कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि कोयला इज नॉट गुड फॉर फ्यूचर। वो देखता है पहले ये लीडर्स कौन कौन है उस कंपनी के अंदर, उसके बाद फास्ट उसकी रिपोर्ट, लास्ट 3 साल की रिपोर्ट क्या है, कितना रिटर्न दे रहा है, क्या वो स्टेक होल्डर्स को पैसे दे रहे हैं टाइम पे, क्या उसके प्रोसेस के अंदर ESG डिपार्ट, क्या पता लगे उसके अंदर, कंपनी के अंदर ESG डिपार्टमेंट ही नहीं हो तो दे विल नेवर गिव द मनी। तो जिस ट्रस्ट पे आप पैसा दे रहे हो उस ट्रस्ट की कोई क्लास ही नहीं है। ये कंसेप्ट है। अच्छा, ESG का वो तो था, ESG रिपोर्ट कहाँ कहाँ यूज होती है, इन्वेस्टिंग में कैसे यूज होती है पैसा लेने के लिए। अब बात आती है ESG रिपोर्टिंग में कहाँ यूज होती है। रिपोर्ट के लिए there are different frameworks are, you can say, outline, guideline, or you can say curriculum syllabus, just like CBSE, ICSE, or Uttarakhand board, or Uttarakhand open board, or you can say Delhi University or IIT campus syllabus। तो ये फ्रेमवर्क है, सिलेबस है, यू कैन से करिकुलम है। ये रिपोर्ट लिखने के तरीके हैं कि यू विल हैव दिस इंफॉर्मेशन, दिस चैप्टर काइंड ऑफ थिंग, सो दैट अगर हर बंदा, हर कंपनी अपनी रिपोर्ट अपने हिसाब से बनाएगा तो सामने वाला क्या समझ पाएगा, विल दैट इजी फॉर हिम। तो इसलिए ये 2-3 तरह के स्टैंडर्ड्स हैं जिनमें आपको बताया जाता है कि आपको अपनी रिपोर्ट इस तरह की तरह से लिखनी है, इसके अंदर ये सिलेबस होना चाहिए, कंटेंट ये होना चाहिए, सीक्वेंस भी यही है कि आपको 4.1 में ये डालना है, 5.1 में ये डालना है, 6.1 में ये डालना है, सो दैट जो रिसीवर है, जो पैसे देने वाला, जो बैंक है, ICICI बैंक है, स्टेट बैंक है, जो पैसा लगाएगा, या यू कैन से पेंशन बोर्ड्स है, वो पैसा आपको देगा तो वो रिपोर्ट पढ़ के देगा, उसको रिपोर्ट समझ में आनी चाहिए। अगर हर रिपोर्ट हर कंपनी के अलग होगी तो ही विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड वेल। इसलिए 4-5 ही कुछ फॉर्म्स हैं, फ्रेमवर्क्स हैं, दे विल हेल्प यू टू मेक कंपनी रिपोर्ट। आने वाले टाइम में यूनिवर्सिटीज को भी अपनी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट जमा करवानी होगी, टाइम ज़्यादा दूर नहीं है। एंड जैसे अभी नेक्स्ट यूनिवर्सिटीज की आपकी रैंकिंग है NERF वाली, A+B, B+B, B++, C++, ऐसे ही सस्टेनेबिलिटी आपकी रिपोर्टिंग आपको सबमिट करनी पड़ेगी और बेस्ड ऑन सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग आपको रेटिंग मिलेगी। अगर आप सिर्फ बोलते हैं हमारी पढ़ाई अच्छी है, हमारी फीस अच्छी है, या कैंपस अच्छा, दैट विल नॉट वर्क। इंक्लूसिव डेवलपमेंट मीन्स आप जो भी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, रिमोट बना रहे हो, AC बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, यू शुड कवर ऑल पैरामीटर्स
so that complete society, complete country will be get affected by your good work. That is known as inclusive development. हम कोई कंपनी बनाते हैं, that will not only work for money only, that will work for customer also, that will work for government also, that will work for society also, that will work for environment also, that will work for, you can say, future also. हर एंगल से आपको सोचना पड़ेगा, सिर्फ एक एंगल की पैसा बने वो वाले कंसेप्ट से भी जो दैट कन्वेंशनल वे ऑफ डूइंग बिजनेस इज नो मोर वर्किंग नाउ. ये आपने केस सुने होंगे, एक छोटे सी सोसाइटी का इश्यू पूरी कंपनी को, ऑपरेशंस को डिस्टर्ब कर देता है, वेट कर देता है, रोक रोक देता है. तो हमको इंश्योर करना है कि कंपनी के अंदर जो करें हमारा काम अच्छा हो, सोसाइटी के साथ लिंक हो, गवर्नमेंट के साथ लिंक हो, कोई रूल रेगुलेशन बाईपास ना हो. ये आ गया ईएसजी रिपोर्ट. रिपोर्टिंग कैसे होता है? रिपोर्ट के दौरान हमें क्या रिपोर्ट करना है, कौन कौन से पैरामीटर का डाटा देना है, जैसे कार्बन इमिशंस, बोर्ड डाइवर्सिटी, जेंडर पे गैप, वाटर कंज्यूम कितना कंज्यूम कर रहे हैं, सप्लाई चेन में क्या एथिक्स चल रहा है, कंपनसेशन क्या चल रहा है. ये है कहानी. ये हमारा सिलेबस है, यू कैन से सिलेबस है और वर्क राइटिंग सीक्वेंस है. जस्ट लाइक हमारे एग्जाम में होता है कि हमारे 20 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव आएंगे और 10 क्वेश्चंस आएंगे, वो यू कैन से लो 10 नंबर के, 5 के, और बाकी 2 नंबर के. वो जस्ट लाइक वे सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड डेफिनेशंस, सब्जेक्ट एंड हाउ दे आर वर्किंग इन द रियल लाइफ. अब आता है स्टेप बाय स्टेप. हम ईएसजी मैट्रिक्स बोले तो हम किसी चीज को नापते हैं तो कैसे नापते हैं? आप नापते हैं आपकी आप कितने होशियार हो, कितना आपका एजुकेशन लेवल है, कितनी अंडरस्टैंडिंग है. देन यू मेजर बाय योर मार्क्स. आपका मान लो साइंटिफिक अगर एक्यूमेंट नापना होगा तो यू विल मेजर पीसीएम स्कोर, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ स्कोर. आपका अगर हमने इंग्लिश नापने है तो विल चेक इंग्लिश स्कोर. अगर आपका इन्वायरमेंट कंसर्न नापना होगा तो विल गो फॉर इन्वायरमेंटल स्कोर, सब्जेक्ट स्कोर, लाइक दैट ओनली. जस्ट लाइक आपका पीसीएम में इंजीनियरिंग के एडमिशन में आपका होता है कि यू शुड हैव 70 मिनिमम 60-70% मार्क्स इन पीसीएम. तो वो आपका इवेल्युएशन क्राइटेरिया है. अभी ईएसजी में करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के एक एग्जांपल है. अच्छा, दूसरी बात है मटेरियल इश्यूज. मटेरियल इशू है मींस कौन कौन से की पैरामीटर्स हैं जो आप उनको समझ के, देख के, रीड करके वी कैन गैस की वी कैन से एनालाइज, नॉट गैस, दैट इज नॉट अ गैस, दैट काइंड ऑफ वी कैन मेक आवर कंसेंसस दैट दिस इज राइट कंपनी, गुड कंपनी, हाउ मच दे कैन गिव अस बैक, हाउ मच सोसाइटी विल बी अफेक्टेड बाय दिस, दैट काइंड ऑफ थिंग. वो है दूसरा मेटल इश्यूज, मतलब की इश्यूज. आपकी हेल्थ के मेटल इशू क्या है? आपकी हेल्थ क्या बताइए? लेकिन आप तो बोलते ही नहीं हो. आपकी हेल्थ के, मैं आपको जनरल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आपकी हेल्थ कैसी है, व्हाट आर द की इश्यूज, हाउ विल मेजर दैट पार्ट? कैन समबडी Sir, सर आंसर? कोई blood. डिजीज नहीं है, ये सब चीजें हो सकती है, बीपी नहीं है, शुगर नहीं है, ये डिसीज सब नहीं चीजें. है, दैट एन आउटकम, बट उसका की पैरामीटर क्या है? कोलेस्ट्रोल, विटामिन यस. स्टेटस, ठीक है, एंड देन ब्लड लेवल, सॉरी ब्लड लेवल नहीं कह रहा हूँ, ब्लड टाइप, कौन सा ब्लड है, hemoglobin level में. हेमोग्लोबिन. परफेक्ट. अब आप सही कंटेंट में हो. तो उसी तरह कंपनी की भी हेल्थ को नापने के लिए वो 10 पैरामीटर्स हैं. उनको कम इंडस्ट्रियल लैंग्वेज में बोलते हैं मेटेरियल इश्यूज, जिनसे कंपनी बनती है. और उस चीज को हर ऐसा नहीं कि जो आईटी कंपनी के मेटेरियल इशू हैं वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के भी होंगे, स्कूटर कंपनी के भी होंगे, या वो कार कंपनी के भी होंगे. आईटी के अलग इश्यूज हैं, स्कूटर के अलग हैं, केमिकल सेक्टर के अलग इश्यूज हैं. तो हर कंपनी के इश्यूज मोटे मोटे की आउटलाइन जो है ना दे रखी है, ये मैप दे रखे हैं इंडस्ट्री के अंदर, जिसके अंदर जैसे सेसबी मटेरियलिटी मैप की, सेसबी में एक स्टैंडर्ड है, सस्टेनेबिलिटी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, उसने दे रखा है कि भैया आईटी कंपनी के अंदर ये 20 आइटम होंगे. दे कैन बी 21 आल्सो, दे कैन बी 19 आल्सो, नॉट मैंडेटरी, बट एक आउटलाइन है, मोटा मोटा यही रहेगा. और कंप्यूटर कंपनी के अंदर ये रहेगा. आपका जी सर. एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर ये की पैरामीटर्स रहेंगे. और कार कंपनी के अंदर ये रहेंगे. ये 3 गाइडलाइन है, सेसबी मटेरियल मैप, बाय इंडस्ट्री, जीआरएस स्टैंडर्ड और टीसीएफडी, टास्क फॉर क्लाइमेट डिस्क्लोजर. उन्होंने अपनी आउटलाइन दे रखी है. ये तो आपको कवर एसेंशियल है, करने करने हैं. यू कैन ऐड टू आल्सो, यू कैन डिलीट टू आल्सो, बट एटलीस्ट ओके. थोड़ा बहुत यू कैन से रेंज दे रखी है. अब आता है हाउ टू सिलेक्ट ईएसजी मैट्रिक्स. ईएसजी मैट्रिक्स आपको सिलेक्ट करने कैसे हैं?
कि हमारी कंपनी के लिए हमें, हमारी कंपनी की हेल्थ के लिए हमें क्या नापना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक सेकंड, हाँ ये पहला पहला जो एरिया था, अंडरस्टैंड मटेरियल इश्यूज, हमारी कंपनी के इशू क्या क्या है। सेकंड है अलाइन विद स्टेक होल्डर एंड बिजनेस। स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं, कुछ कुछ वर्ड मेरे को। जिन्होंने अपनी कंपनी में इन्वेस्ट किया हो। नहीं, वो तो इन्वेस्टर हुए ना। इन्वेस्टर एक स्टेक होल्डर है, इन्वेस्टर एक स्टेक होल्डर है, बट स्टेक होल्डर होते क्या है। एग्जाम्पल बोलूं मैं, देन यूर आंसर राइट, इन्वेस्टर इज वन वन ऑफ द स्टेक होल्डर। मोटा मोटा 5 तरह के स्टेक होल्डर होते हैं: कस्टमर, इन्वेस्टर, लीगल बॉडीज, एम्प्लॉयज, सोसाइटी एंड पॉलिटिकल एंड लीगल बॉडीज। ये 5 है, कैन भी 6, इनको 6 में करो, 5 में करो, 7 में करो, मैटर नहीं करता आपको। तो ये चीज में आपका पूरा वर्ल्ड कवर हो जाता है। सॉरी, एक वो हो गया, सप्लायर एंड पार्टनर मैंने मिस किया था, सप्लायर एंड पार्टनर। जी सर। हम्म इनको अगर हम कवर करते हैं तो हमारी कंपनी की ग्रोथ हमें हमेशा अच्छी मिलेगी। अगर हम सिर्फ इनमें से 5 में से एक की बात करें, एक को ध्यान दें, बाकी 4 को छोड़ दें, तो समवेयर वी आर एट रिस्क फॉर लॉन्गर टर्म। वी हैव टू कवर एवरी पांचों एक्सपेक्ट, वैसे है ना, पांचों उंगलियों में हमें हेल्थ चाहिए, हमें अच्छी, यू कैन से, गुड ब्लड भी अच्छा चाहिए, हेमोग्लोबिन का क्वालिटी अच्छा चाहिए, विटामिन अच्छे चाहिए, उसके बाद ब्लड की थिकनेस भी अच्छी चाहिए। तो ऐसा है, उनको मिला के हेल्थ बनेगी। हमारा सिर्फ ब्लड का हेमोग्लोबिन अच्छा है, बाकी चीजें डिस्टर्ब होंगी तो शुगर, हाँ सॉरी, शुगर को तो हम मिस कर रहे हैं, शुगर मिस किया हमने, बीपी मिस किया हमने। तो ऐसे ही एवरीथिंग हैज टू परफेक्ट, देन ओनली विल गेट अ संपूर्ण, कैन से, हेल्दी बॉडी। ऐसा ही कंपनी का है। आपको इन्वेस्टर अच्छे चाहिए, कस्टमर अच्छे चाहिए। अगर सब कुछ अच्छा है, मान लो आपने बड़ा अच्छा प्रोडक्ट बनाया है, कस्टमर पार्क, बट उसकी मार्केट में डिमांड नहीं है। चलो 1 मिनट ब्रेक लेते हैं, ये थोड़ा सा आउट ऑफ द ट्रैक बात करते हैं। कुछ मुझे ये बताओ, जितने भी स्टार्टअप्स होते हैं, मतलब छोटे वाले स्टार्टअप, नॉट बिगर स्टार्टअप, वो फेल क्यों होते हैं, जो आप जैसे हम जैसे ने किए स्टार्टअप किए। सर देखो, मार्केट में डिमांड नहीं होता इसलिए। हाँ यार, बड़ा परफेक्ट आंसर दिया यार, पहली बार में दिया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया सुन के। हम, हमारी जो टेंडेंसी है कॉमन एम्प्लॉय की, जो जितने बंदे अपनी जॉब लाइफ से मूव होते हैं बिजनेस लाइन में, वो गलती पता क्या करते हैं। मान लो मुझे, मैं इस पूरा रिमोट, रिसर्च नहीं करते मार्केट की कि क्या डिमांड है और क्या हाँ है। रिसर्च तो करते हैं, रिसर्च रिसर्च की दिशा उल्टी होती है। जैसे मान लो रिमोट बनाते हैं, ठीक है, हमने पता कर लिया कि इसका प्लास्टिक कहाँ से मिलता है, ये रबड़ के पैड कहाँ से मिलते हैं, और इसका जो, क्या बोलते हैं, स्प्रिंग कहाँ से मिलता है, स्टिकर कहाँ से मिलते हैं, बारकोड कहाँ से मिलते हैं, ठीक है। अब हमें लगता है कि इसके तो हम मास्टर हो गए हैं। चलो 10 साल इंडस्ट्री में काम कर लिया, हम बिजनेस करते हैं। हम क्या करते हैं, पैसा लाते हैं, फैक्ट्री लगाते हैं, उसके बाद फैक्ट्री लगा के बना देते हैं, क्योंकि हम इसमें मास्टर हैं, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। ठीक है, हर बंदा 10-12 साल में ठीक ठाक हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। इनो की कहाँ से मेटल बाय करना है, चीपर बाय करना है, और अच्छा प्रोडक्ट बना भी दिया उसको। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है, मार्केटिंग अब कैसे करें? जो आपका, नहीं नहीं नहीं, मार्केटिंग भी चलो चल जाती है। हमारी जो रिसर्च है ना, सर कंज्यूम कैसे होगा सामान? गुड टू सम एक्सटेंट, हाँ। हमारी जो रिसर्च है ना, हमारे जो चीज़ हमें पता है, हम उसको प्रायोरिटी देते हैं, और बाकी चीज़ को प्रायोरिटी छोड़ देते हैं। हमें मैन्युफैक्चरिंग पता है, हमें इसकी बाइंग पता है, हमें इसका प्रोसेस पता है, बनता कैसे है, लोहे से बनता है, पत्थर से बनता है, प्लास्टिक से बनता है, हम उसको प्रायोरिटी दे दी हमने। जो पार्ट हमारा नहीं है, मतलब सेल्स वाला हमारा हमारा पार्ट नहीं है, तो हम उसको छोड़ देते हैं। और दूसरी बात, हमने क्या किया, बना दिया, बन के रेडी हो गया। अब हम उसको ढूंढना चलते हैं, हम उसको मार्केट में डिमांड से नहीं खींच रहे हैं, हम उसको मार्केट में पंचर करके डाल रहे हैं। समझ गए, जैसे कील, वी पुट द नेल इन द वुड ना, तो ने पुटिंग नेल इन द वुड फोर्स फिटिंग ना, नेल विल मेक हिज ओन स्पेस। दैट इज, इस वे में बिजनेस नहीं चलता। मार्क, वी शुड स्टार्ट अवर रिसर्च फ्रॉम द कस्टमर साइड, नॉट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर साइड। हमें, जी हमारे सर। पास लगता है कि हमें फैक्ट्री खोलनी है, हमें, हमारे पास ठीक ठाक पैसा आ गया है, हमारे पास पैसे का अरेंजमेंट हो गया है, और हमें एक्सपीरियंस ठीक है, और हमें मतलब आइडिया हो गया मोटा मोटा। देन वी शुड स्टार्ट और रिसर्च कि हमें पहले बनाए क्या। ये नहीं कि हम जो बना रहे थे हम वही बेचेंगे मार्केट में, ऐसा नहीं है। ये बड़ी
70-80% स्टार्टअप ऐसे ही फेल इन द सेंस नहीं चल पाते, क्योंकि हमें मार्केट में सर्च करती है कि हमें 5 आइटम 10 आइटम कौन से हैं जो डिमांडिंग हैं। उन डिमांडिंग रिसर्च टू स्टार्ट फ्रॉम द मार्केट कस्टमर, फिर जी रिवर्स सर। लेके आएगी कि कस्टमर से डिमांड आएगी, हम्म, सप्लाई कैसी होती है, सप्लाई के बाद बनते ये 5 आइटम में से हम 5 में से हमारे पास नॉलेज कितनी है, फिर नॉलेज कितनी है कि भैया 5 आइटम है, रिमोट है या बैग है या यू कैन से परफ्यूम है, एसी है, स्टेबलाइजर है, इनकी डिमांड कैसे, इनमें से हम 5 आइटम में से डिमांड हमने समझ ली, डिमांड कितनी है, किस एरिया में, नॉर्थ में या साउथ में है, बनता है, सप्लाई कैसे होता है, फिर कस्टमर से कैसे जाता है, फिर हमारे पास ऑप्शन आता है कि इन 5 में से 10 आइटम, 5 में से 3 आइटम हम कौन से बना सकते हैं। दैट इज द फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया, या जिसमें हम कंपिटेंट हैं, जिसका हमें मार्केट का पता है, सप्लायर का पता है माल का, फिर हम 3 में से हमें एक चीज चूज करनी चाहिए समझ के ऐसा। जी सर। तो रिसर्च टू स्टार्ट फ्रॉम द डिमांड नॉट फ्रॉम द अवर कैपेबिलिटी कि मैं बना सकता हूँ, वो रिवर्स रिसर्च होती है वो। क्लियर अभी? तो ये मतलब जी। आउट ऑफ द स्कोप था, थोड़ा सा मैं भटक गया था, हम्म, वापस हाँ। आते हैं। ठीक, अलाइन विद स्टेक होल्डर्स बिजनेस गोल, तो आपको इन्वेस्ट करना है कि हमारा पैसा कहाँ से आएगा, कस्टमर क्या है, डिमांड है कि नहीं है, एंड इम्प्लाइज है कि नहीं, इम्प्लाइज कैसे हैं, कहाँ से आएंगे, किस टाइप की मार्केट से, हमें वुड के लिए वुड के इम्प्लाइज चाहिएंगे। और उसके बाद बात आती है थर्ड पॉइंट की, इंश्योर डाटा अवेलेबिलिटी, इसके लिए हमारा जो डाटा आएगा उसका कैसा है, क्या ऑपरेटर अपनी मशीन के पास बैठ के लिख रहा है कि हमारे कितने पीस बने, कैसे बने, और उसके बाद डेटा डिजिटलाइज है, जैसे ऑपरेटर पंच करता है तो उसका बार कोडिंग से डाटा उसका कंप्यूटर फीड हो जाता है। डाटा का फ्लो क्या है, शुरुआत कहाँ हो रही है और डाटा कंपाइल कहाँ पे हो रहा है, क्या शुरुआत और डाटा कंपाइलेशन में गैप तो नहीं है, पता लगे ये 10 पीस पंच कर रहा है शिफ्ट के, वो शिफ्ट के 9 पीस पहुंच रहे हैं वहां तक, या कई बार 10 पहुंच रहे, कई बार 8 पहुंच रहे, कई बार 11 पहुंच रहे हैं, वो ना होना चाहिए। उसके बाद डाटा से कुछ इंफॉर्मेशन निकल के आ रही कि नहीं आ रही, कि डाटा वेरी हो रहा है, सिर्फ डाटा किसी काम का नहीं है अगर डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट ना हो तो, वो तो एक डब्बा है। देन उसके बाद ये सब कहानी हम बता रहे हैं कि ये ऐसी मैट्रिक सिलेक्ट कैसे करनी है, कि हमें हम्म, रिपोर्ट भेजनी है तो रिपोर्ट के लिए मसले मसाला कहाँ से आएगा, इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आएंगे, हमने मिर्ची कौन सी यूज करनी है, देगी मिर्च यूज करनी है, नॉर्मल मिर्च, एमडीएच की मिर्च यूज करनी है, वो सब। जी सर। And उसके बाद हम बात करते हैं, उसके बाद हमारा सब कुछ मैटर तैयार हो गया, उसके बाद हमें बनाना क्या है, अब आता है एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क। भाई उसी चीज से, उसी इंग्रेडिएंट से, हल्दी से 10 चीज बनती है, चावल से 10 चीज बनती है। अब बनता है बनाना कैसे, रेसिपी, ये जीआरआई, एसएसबी, टीसीएफडी, सीडीपी, यूएनएर्जी या द रेसिपी, इन रेसिपी से हमें चूज करनी कौन सी रेसिपी हमारे लिए बेटर रहेगी, कम बटर की, ज्यादा बटर की, फ्राई करना है, बेक करना है, वो सब फंडामेंटल। अब आता है मैट्रिक्स, हमें इनसे नापना क्या है, कंपनी के लिए हमें रिपोर्ट लिखने में नापना क्या है, हमें पता होना चाहिए कि हमारे कंपनी से कितना कार्बन निकल रहा है। स्कोप 1 2 3 अभी बताऊंगा मैं। एंड जीएचजी मिशन, जीएचजी इज ग्रीन हाउस गैस इमिशन। आने वाले टाइम में, नो टाइम ज़्यादा दूर नहीं है, आप लोगों को भी सस्टेनेबल यूनिवर्सिटी का कंसेप्ट आएगा, मैं अभी बताया था अभी, उसमें आपको बताना पड़ेगा कि हम कितना कार्बन लूज, कितना एमिशन कर रहे हैं, आपकी कंपनी, सॉरी आपकी यूनिवर्सिटी कितना रिलीज कर रही है कार्बन, कितना बिजली यूज कर रही है, कितनी, कौन सी बिजली, कौन सी थर्मल वाली है, रिन्यूएबल वाली है, और पर एम्प्लॉय या पर यू कैन से तुम्हारे आपके कैसे पर स्टूडेंट कितनी बिजली यूज कर रही है। एज ए मान लो आपके पास 3,000 स्टूडेंट्स हैं, तो आपके पर एम्प्लॉय के कोटे में कितनी बिजली आ रही है, पर किलोवाट पर रेवेन्यू, या पर यू कैन से स्टूडेंट, स्टूडेंट प्लस एम्प्लॉय। वाटर, वाटर कंजप्शन कितना है आपके केस में, कितना आप रिसाइकिल कर रहे हो, क्या आप सारा वाटर फ्रेश ले रहे हो, मार्केट में छोड़ रहे हो, या सॉरी बाहर छोड़ रहे हो, या कुछ रिसाइकिल भी कर रहे हो, क्या वेस्ट रिलीज कर रहे हो, पेपर का, हार्ड डिस्क वेस्ट का, कंप्यूटर्स का, ई वेस्ट का, एंड यू कैन से मेडिकल वेस्ट का, और पेपर, वुड, मेटल का, कितना वेस्ट कर, हर चीज का आपको रिकॉर्ड देना है, और साल बाय साल, ईयर बाय ईयर आपको उसको कम करना है। बायोडाइवर्सिटी, आपके एरिया में आपके कितने प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, कितने वहाँ पे रेयर स्पीसीज ऑफ बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, या प्लांट्स हैं, और उनके उनको बचाने के लिए आपने क्या किया। मैट्रिक्स या केपीआई होता है जिस चीज का आपको नापोगे, वो होता है। और ये होता है यूएम, होता है यूनिट ऑफ मेजरमेंट, आपको किस यूनिट में नापोगे, किलोग्राम बाय किलोवाट, केजीज, वो उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है।
अब आती बात ईएसजी के 3 पैरामीटर कौन से थे? 3 विंग कौन सी है ईएसजी की? ये तो बता दो, 3 ईएसजी का फुल फॉर्म क्या है? चलो, अजय बाबू। environment, sustainability and governance. वेरी गुड, इन्वायरमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट केस मैंने बताया आपको, विल मेजर दीज काइंड ऑफ थिंग्स। नाउ विल कम टू सोशल। सोशल में आप कैसे नापोगे कि हाउ वी आर स्ट्रॉन्ग? परसेंटेज ऑफ वुमेन employed, percentage of minorities employed, percentage of pay equity ratios क्या चल रहा है, labor practices, workforce turnover, percentage of ionized workforce, unionized, sorry, unionized, कितना वर्कफोर्स यूनियन के अंडर में आता है, सेफ्टी इंसिडेंट कितने चल रहे हैं। अगर किसी कंपनी में सेफ्टी इंसिडेंट ज्यादा होंगे तो क्या नेक्स्ट एम्प्लॉयर जो आएगा हमारे ज्वाइन करना चाहेगा? यस और नो? No, sir. नो नो। अगर हम किसी अगर हम अपनी कंपनी से कम्युनिटी को इम्पैक्ट कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ गैस छोड़ रहे हैं, या कुछ वाटर में कंटामिनेशन कर रहे हैं, या गैस वाटर हुआ, या कुछ शोर मचा रहे हैं, या कुछ हजार्डस वेस्ट छोड़ रहे हैं, नोबडी विल लव टू बी ए पार्ट ऑफ दिस दैट कंपनी। तो सोसाइटी के साथ हमें इंटैक्ट रहना है, सोसाइटी के साथ सिंक होकर चलना, बिल्कुल सिंक। ह्यूमन राइट्स। आपने नाम सुना था वेदांता टुट्टिकोन? आई थिंक कभी सुना है नाम, न्यूज में सुना था फिर। Medanta Hospital. नहीं, वेदांता वेदांता पॉक्सकॉन। वेदांता वेदांत। Okay, okay. वेदांता पॉक्सकॉन। हम्म। तो वेदांता का एक साउथ में प्लांट था, वो इनिशियली काफी रिलीज करता था, काफी एमिशंस वगैरह नॉर्म्स। धीरे धीरे उसका अपोज हुआ, फिर धीरे धीरे उसको प्लांट पूरा बंद ही करना पड़ा, बिकॉज दे डिडंट टेक दैट सीरियसली। वो सोचते कि चल जाएगा, हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने प्लांट ही बंद कर दिया। हजारों करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट जो थी वेस्ट हो गई, ड्यू टू दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड की केयरलेस है, छोड़ो हो जाएगा, चल जाएगा काइंड ऑफ थिंग। नेक्स्ट चीज का, जब आपकी बात हो रही थी कि मैंने कहा था कि एमएससी कंप्यूटर वाले क्या करेंगे, इस एज में क्या करेंगे, तो आपका पॉइंट आ गया। देखो, कस्टमर प्राइवेसी, नंबर ऑफ डाटा ब्रीचेस, प्राइवेसी पॉलिसी एनफोर्समेंट। उस डिपार्टमेंट जो लगता है कि इन्वायरमेंट का मतलब इन्वायरमेंट का ही बंदों का ये फंक्शन है, उनका प्रोफाइल है ये कंपनी के। जैसे फर्स्ट की बात करते हैं हम, डाइवर्सिटी, ये किसने इंश्योर करना है कंपनी के अंदर? फर्स्ट पॉइंट जो है डाइवर्सिटी वाला, किसने इंश्योर करना है कंपनी के अंदर? एमबीएचआर ने, जो आपके एमबीएचआर निकलेंगे। सेकंड पॉइंट है लेबर प्रैक्टिसेस, ये किसने इंश्योर करना है? एमबीएचआर ने, या जो आपका बीबीए वाले बंदे हैं। कम्युनिटी इम्पैक्ट, ये किसने इंश्योर करना है? सीएसआर वाले बंदों ने, जो आपके सीएसआर के बंदे पास आउट होंगे। ह्यूमन राइट्स, लीगल वाले बंदे को इंश्योर करना है, जो आपके यूनिवर्सिटी से एलएलबी निकलेंगे। कस्टमर प्राइवेसी किसने इंश्योर करना है? जो आपके एमएससी आईटी वाले बंदे निकलेंगे। तो हर प्रोफाइल कवर्ड होगा, इसमें मैं जोड़ देता हूँ। कार्बन एमिशन किसने इंश्योर करना है? Environmental Science. इन्वायरमेंट साइंस तो एक्चुअली वो मेजरमेंट में है, वो एक्सपर्ट है, बट उसमें जो मैन्युफैक्चरिंग वाले बंदे हो, जैसे आपके बीटेक होंगे या Okay. बीएससी या बीबी को, वो बंदे मनाएंगे, मनाते वक्त भी तो उन्होंने इंश्योर करना है ना। Mhm. इन्वायरमेंट सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, दे कैन गाइड यू। Okay, sir. यूजेस किसने करना है? Mhm. आपका जो बीएससी वाला बंदा होगा, जो मान लो जनरेटर चलाएगा, किसी कंपनी में जनरेटर चलाएगा या पावर सप्लाई करेगा, या इलेक्ट्रिकल का बंदा होगा, उसने इंश्योर करना है। वाटर, वाटर तो हर किसी ने इंश्योर करना, जो पानी पिएगा, जो यूज करेगा, जो टैप चलाएगा, सिंपल। एवरी एवरी मीन्स एवरी पर्सन। वेस्ट मतलब, जो बंदा आपका मान लो यूनिवर्सिटी की परचेज टीम होगी, उसको इंश्योर करना है कि मैं कोई आइटम लूँ तो मेरा, मान लो आपने कंप्यूटर लिए 100 कंप्यूटर, ठीक है, 100 कंप्यूटर ने आपको जो जो उसके बाद कंप्यूटर तो यूज हो गए, उसके बाद जो उसका गत्ता बचता है, कार्टन बचता है, दैट कार्टन एंड दैट आई कैन से थर्मोकोल पार्ट, दैट इज ए मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट hazardous waste. How you will manage that part? That supply chain person, a purchase person has to ensure that with whom you buy this product have to make a contract, can say contract that will give you back. जो थर्माकोल आपका आएगा हमारे पास, विल गिव यू बैक, क्योंकि आपको अपने उस पे एंड पे हजार्डस वेस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने नहीं बढ़वानी है। या आप उसको बोलो मुझे हजार्डस चाहिए, मुझे चाहिए ही नहीं भाई, अपना डिलीवर करो,
अपना वापस लेके जाओ। आप पहले आप हजारडा स्पेस को बाय करोगे, इसको डिस्पोज ऑफ के लिए आपको लीगल रेगुलेशन में दिक्कत आएगी। आप उसको बोलो यू कैन कार्टन हम आपको वापस देंगे, गुड गुड कंडीशन, यू कैन यूज दैट सेम पैकिंग फॉर डिफरेंट नेक्स्ट नेक्स्ट बैच ऑफ कंप्यूटर्स। उसमें कुछ घटता थोड़े है, जी बट यू सर। हैव टू इंश्योर दैट यू गिव गुड कंडीशन। हम्म। तो सिमिलर इन्वायरमेंट हमने कवर कर लिया, सोशल कवर कर लिया। नाउ कम टू गवर्नेंस पार्ट। अभी आती है बोर्ड कंपोजिशन। कंपनी के अंदर बोर्ड बनता है, उसके अंदर बोर्ड के अंदर हर मतलब कैन से परसेंटेज ऑफ इंडिपेंडेंट कितने होने चाहिए, एक रेगुलेशन फॉलो करना चाहिए कि हमारे 30% या 3% या 2% डायरेक्टर्स होने चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। बोर्ड के अंदर ऐसा ना हो कि सभी पुरुष पुरुष कैन से मेंबर हों। बोर्ड के अंदर महिला मेंबर का होना बहुत जरूरी है, अभी शायद मैंडेटरी भी है। वो है। अभी आती है बात एथिक्स एंड कंप्लायंस की, जो आपके कैन से इसको बोलते हैं आईसी, यानी सी के अलावा एक दूसरा होता है ना बंदा, आईसी, एक सी होता है, एक दूसरा चार्टर्ड अकाउंटेंट के अलावा एक और है। सीएस होता है एक। हाँ सीएस, हाँ सीएस, राइट राइट, सीएस, हाँ चार्टर्ड सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी। राइट राइट। मेरे को चार्टर्ड वर्ड से थोड़ा सा ब्लर हो रहा था। तो कंपनी सेक्रेटरी को इंश्योर करना है, जो आपके कॉलेज से आपके यूनिवर्सिटी से सेक्रेटरी निकलेंगे, उनको इंश्योर करना है कि कंपनी के अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का जो परसेंटेज है वो राइट प्रोपोर्शन में हो। बोर्ड के जो कंपोजिशन है उसके अंदर महिलाएं भी हों, पुरुष भी हों। जो कंपनी की एथिक्स एंड कंप्लायंस है वो फॉलो करे, नंबर ऑफ एथिक पर्सन, इसको इंश्योर करना कि ईयर ऑन ईयर या आपको कंपनी को डिक्लेयर करना होता है कि मैंने इस वर्ष में इस महीने में इस जितने कंप्लायंस थे उनमें से इतने कंप्लायंस को फॉलो किया। आपको सेल्फ डिक्लेरेशन देना होता है सीएस को, कंपनी सेक्रेटरी को, ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। हमने एंटी करप्शन की ट्रेनिंग दी है, वो मैंडेटरी है। आपको पोस्ट है, पोस्ट की ट्रेनिंग दी है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट की ट्रेनिंग दी है। तो ये गवर्नमेंट गाइडलाइंस है। तो कंपनी सेक्रेटरी को बोर्ड कंपोजिशन में काफी इन्वॉल्वमेंट रहेगा। अब ये पोस्ट की ट्रेनिंग में काफी इन्वॉल्वमेंट रहेगा, एंटी करप्शन ट्रेनिंग में इन्वॉल्वमेंट रहेगा। तो उनको डिक्लेयर करना होता है कि हमारी कंपनी ने ये चीजें कवर की है। तो एग्जीक्यूटिव पे, हाँ एचआर को इन्वॉल्व करना पड़ेगा कि एग्जीक्यूटिव जो पे है वो राइट मैनर में जो डिसाइड किया गया वो पे किया गया, कमिटमेंट जो था उनको किया गया है। ऐसा ना हो कि ऑफर लेटर में कुछ और है, दिया कुछ और है, कुछ और है। ठीक है, उसके बाद आता है रिक्वायरमेंट की बात। उसके अब बात आती है रिक्वायरमेंट से ऊपर काम करना। एक चीज मैं ऐड करूंगा, एक्सीलेंस होता क्या है, व्हाट डू मीन बाय एक्सीलेंस? जो आप कर रहे हैं वो अच्छे से करें। ठीक है, और मोर पीपल, आई थिंक आप ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजर हो, आप तो आपको बोलने की ड्यूटी है सारी आपको ही मिली गई है। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं। सर एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। हाँ हाँ ठीक है, थोड़ा सा एलोबरेट करोगे तो मुझे क्लियर होगा कि व्हाट यू वांट टू कन्वे। एक होती है रिक्वायरमेंट, एक होती है अबोव द रिक्वायरमेंट। आपको पास होने के लिए कितने मार्क्स लगते हैं आपके बोर्ड यूनिवर्सिटी में? 40 है सर कितने, 33? 40%। 40%। तो 40% इज रिक्वायरमेंट, वो तो आपको करना ही करना है। दैट इज नॉट एक्सीलेंस, दैट इज ए क्वेश्चन फॉर सर्वाइवल। आपको पास हो रहा है तो आपको 40 लेने हैं। अब 40 से आप जितना ऊपर जाओगे दैट इज एक्सीलेंस के लेवल, सुपर एक्सीलेंस या हाई एक्सीलेंस या एक्सट्रीम एक्सीलेंस। अब क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। सिर्फ खाना खाना, सोना, जो काम बोले वो काम करना, दैट इज नॉट एक्सीलेंस। आप योगा करते हो दैट इज एक्सीलेंस। आप सुबह शाम रनिंग करते हो दैट इज एक्सीलेंस। आप अपने काम के साथ प्रोफेशनल बुक्स पढ़ते हो, मैनेजमेंट बुक्स पढ़ते हो कि स्टीव जॉब की बुक्स पढ़ी है आपने, दैट इज एक्सीलेंस। आपको कंपनी का टारगेट है कि आपको 10 सर इट कैन मीन से एडिशनल वर्क। एडिशनल तो नहीं होगा, एडिशनल नहीं, एडिशनल कह भी सकते बट दैट इज नॉट क्वांटिटी ऑफ, दैट इज क्वालिटी ऑफ वर्क की बात कर रहा हूँ। लेट्स दैट से इज अबव मिनिमम। गुणवत्ता, कैन से क्वांटिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं, मात्रा की बजाय गुणवत्ता पे ज्यादा फोकस रहता है। डूइंग इज द बेस्ट वे। हाँ, डूइंग इज द बेस्ट वे, इज द एक्शन टू गेट दैट एक्सीलेंस। डूइंग इज द बेस्ट वे इनपुट ना। देखो यस सर। प्रोसेस, तीन चीज है प्रोसेस के अंदर, ये प्रोसेस है। तो चाय की बात करते हैं हम, थोड़ा चाय सबको समझ में आ जाएगी।
चाय के अंदर बनाने की प्रोसेस, चाय का प्रोसेस आप समझते हो सब लोग? सर Yes, खुद के sir. लिए किसी और के यस लिए सर। आपने बनाई बनाई? ठीक है, अब चाय के बारे में जवाब आ रहा है, चलो ठीक है। चाय के प्रोसेस में इनपुट क्या है? सर वो दूध, अच्छी बननी चायपत्ती, चाहिए। चीनी और हम्म, आपकी नहीं नहीं, पानी और क्रीम। चाय। वो जंप कर बेस्ट। गया, हाँ, जो जंप कर गया। वो मेरा सवाल सुनो, चाय के प्रोसेस में इनपुट क्या है? वो अच्छी बननी चाहिए। पानी, नहीं नहीं, चाय No. और हाँ 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 हाँ, ये पानी वाला बंदा था जो भी था, मैं हाँ, सॉरी टू पान एक्सप्लेन। हाँ, पानी पानी, चाय। पानी, दूध, पानी, चाय, टी लीव्स, टी मिल्क, लीव्स एंड एंड सर फेम। गैस, एंड पतीला आल्सो, Ginger. ठीक है। Hmm. हाँ जिंजर, हाँ, वेरी गुड, जिंजर, दिस इज गुड। सर गैस फ्लेम इज नॉट। हाँ मतलब वही हीट, पतीला मतलब वही हीट, सोर्स ऑफ हीट कह लो उसको, पतीला कह लो, गैस है, पतीला है, एंड यू कैन से जो इंग्रेडिएंट्स हैं, चीनी, पत्ती, चाय, अदरक एंड ऑल, ठीक है। अभी आती है बात प्रोसेस की। इनपुट के बाद क्या होता है? प्रोसेस। अब प्रोसेस कंडीशन क्या है चाहिए? प्रोसेसिंग। हाँ, प्रोसेसिंग, उसकी क्या कंडीशन क्या है? सर प्रोसेस, we can give the heat to it, then it can be processed and then make the result as a tea. प्रोसेस है कि सीक्वेंसिंग है? पहले आपको पानी उबालना The है। sequence is by boiling the water, हाँ then हाँ। we can put the milk, then we can No. मिल्क पहले नहीं आएगा शायद, जो चाय आपने बनाई नहीं लगता है। chai patti, हाँ, आपने सिर्फ चाय पी है। the tea leaves. अभी बंद बंद करो। Sorry sir, water, then tea leaves, then हाँ, milk, then sugar. ठीक है, हाँ, यही सीक्वेंस जो है बेस्ट है, मतलब जो है ना। Am I कम, right? चाय तो, हाँ ठीक है, चाय तो बन जाएगी, आप सीक्वेंस चेंज कर दो, लेकिन चाय अच्छी नहीं बनेगी। तो इट मीन्स योर प्रोसेस हैज टू राइट मैनर, राइट सीक्वेंस, राइट क्वांटिटी, राइट प्रोपोर्शन, सही तापक्रम पे। अगर हम चाय को 5 बार उबालेंगे, 6 बार उबालेंगे, क्या हो जाएगा चाय का? वो इंस्टाग्राम पे आता है ना कि ज्यादा उबालने से चाय जहर बन जाती है, Right, आता है sir. ना? Hmm. हाँ, तो वो है, एक्सेस ऑफ प्रोसेसिंग आल्सो वेस्ट, उसमें गैस भी वेस्ट होगी, और हमारी चाय का जो टेस्ट होगा वो रियलिस्टिक नहीं आएगा। तो मीन्स ओवरऑल कंसेप्ट इज, उसके बाद चाहे हमने प्रोसेस प्रोसेस फॉलो कर दिया, अब क्या होगा? चाहे आउटपुट क्या चाहेगा, बताओ आउटपुट क्या है? Sir, good taste. Tea. हम्म, राइट क्वांटिटी, राइट अपीयरेंस, राइट फ्लेवर, एंड फ्लेवर के बाद और क्या होता है? हाँ, क्वांटिटी, फ्लेवर, और क्वांटिटी, फ्लेवर और अपीयरेंस, और उसके बाद वो राइट टेस्ट आल्सो। फ्लेवर तो टेस्ट में होगा, टेस्ट आल्सो, बेसिक जो चीनी का टेस्ट है या चाय पत्ती का वो अच्छा आना चाहिए। फ्लेवर इज एडिशन, फ्लेवर इज, Sir, excellent feeling. सॉरी, कम अगेन। एक्सीलेंट। Feeling, sir. हाँ, फीलिंग। अरे हाँ, एक चीज मैं भूल गया था, वन थिंग आई मिस्ड, कि चाय की सर्विंग कैसी है, दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट ना। सर टायरनेस को दूर कर देता है कान को, चाय हेल्प हाँ, अस। वो भी ठीक है, हाँ, ठीक है। तो ओवरऑल चाय के साथ साथ हमें एडिशनल क्या भी ध्यान रखना है? चाय की अपीयरेंस कैसे, आप उसे कैसे सर्व कर रहे हो? चाय ठंडी तो नहीं सर्व, पता लगे चाय अच्छी बना दी, सर्विंग के टाइम पे ठंडी हो गई तो मजा नहीं है। चाय अच्छी बनाई आपने, सर्विंग के लिए टूटे टूटे कप में सर्व किया, नो, नो मैटर, आप उसे अच्छी बोन चाइना में सर्व करोगे, अच्छे से उसको अच्छी कटलरी में सर्व करोगे। कटलरी मीन्स, आई मीन कप एंड ग्लासेस एंड पूरा प्रॉपर सीजर, सॉरी, क्या होता है, स्पून एंड रोल, तो दैट विल गिव बेट, मीन्स एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट, नॉट ओनली चाय। चाय के साथ साथ जो उसका इन्वायरमेंट है, जो सर्व कर रहा है, उसके बाद ingredients, आधे घंटे बाद तो बात होती है, सस्टेनेबल चाय ना। तो चाहे पोस्ट कंजम्पशन आल्सो मैटर, ऐसे ही हम प्लास्टिक का बनाते हैं, तो कंपनी एक होता है, कंसेप्ट होता है एंड ई आर, इसी के अंदर काफी कंसेप्ट है एंड प्रोड्यूसिबिलिटी, इसके अंदर कि हमने मारुति गाड़ी बनाती है, मारुति अभी गाड़ी के साथ साथ क्या क्या प्रमोट कर रही है कि हमारी कार आओ और वो करो, कुछ डिस्काउंट लेके जाओ, तो वो क्या है वो? एक तो लॉयल्टी बोनस प्रमोट करने के लिए कि हमारा मारुति का बंदा मारुति में ही रहेगा, जो एंड कंज्यूमर
होगा। दूसरी बात, उसको एब्जॉर्ब करके गाड़ी को, उसमें जो प्लास्टिक होगा प्लास्टिक निकाल लेगी, मेटल मेटल निकाल लेगी, और उस मेटल को रिसाइकल करके दोबारा गाड़ी बनाएगी। तो उसने क्या किया, अपनी नई गाड़ी बनाने के लिए जो धरती से मिनरल्स निकलते थे उनको कम कर दिया ना। गॉट इट। Yes, sir. Yes, sir. हम्म। उसने नई गाड़ी बनाने के जो उसके जो कार्बन गोल थे कि हमारे मेटल निकालने में, उसको मेटल निकालने को बोलते क्या है, उसको जमीन से मेटल निकालते हैं, तो पुरानी चीजें भूल गए। माइनिंग अर्थ से माइनिंग मेटल निकालने, जो माइनिंग माइनिंग। तो माइनिंग में हमारी जो कार्बन इमिशन था हमने कम कर, सॉरी इमिशन नहीं, माइनिंग में हमने कंजप्शन ही कम कर दिया। कितना बड़ा अचीवमेंट है ये। और देखो उसको डबल फायदा है, उधर से कार्बन कम हो रहा है, और इधर से आपका जो कस्टमर है, पुराना कस्टमर, वो रिटेन हो रहा है ना। म्यूचुअल बेनिफिट, इन्वायरमेंट का Yes, sir. बेनिफिट हो गया, लीगल प्रोसेस कवर हो गए, और इधर आपका कस्टमर भी मेंटेन रह गया। और सर कितना माइनिंग बढ़िया वालों की फायदा है। जॉब चली गई ना। जॉब क्यों चली माइनिंग गई? वाले अब उनको माइन कम करना पड़ेगा सर। अरे नहीं, रिक्वायरमेंट तो बढ़ ही रही है ना। एटलीस्ट कुछ कम हो गया, क्वांटिटी कम हो गई। बट माइनिंग इज नॉट एडवाइजल प्रोसेस ना, और माइनिंग इज आल्सो हजार्डस। अभी आप देख लो रिसेंट एग्जांपल में, अभी जो पिछले लास्ट वीक या 2-3 वीक में जो बारिश बारिश हुई है, तो उससे क्या आपको कुछ देखा, आपको कुछ क्या कुछ सेंस हुआ? ये सर जम्मू एंड कश्मीर में वो जो फ्लड हुआ है वो। और उत्तरकाशी में मेरा ओपिनियन, पर्सनल ओपिनियन है, थोड़ा सा आई मे बी रॉन्ग आल्सो, आई कैन राइट आल्सो, कि ज्यादा इन्वायरमेंट से छेड़खानी करना इज नॉट अ गुड गुड एडवाइजेबल। गुड इट। अग्री सर। तो ये तो जो जो इन्वायरमेंट के बंदे जो कंसर्न है, जो इन्वायरमेंट प्रिजर्वेटिव हैं, वो जो लद्दाख वाले सर का नाम क्या है, प्रोफेसर वोंगचुंग, राइट, इफ आई एम नॉट स्पेलिंग इट रॉन्ग। आपको, आप शायद न्यूज व्यूज देखते नहीं हो, हाँ। प्रोफेसर वो वोंग चंग है जो लद्दाख वाले जो हैं, वो कहते हैं कि भैया डेवलपमेंट इज गुड, बट नॉट ऑन द कॉस्ट ऑफ इन्वायरमेंट। हाईवे बनाना इज गुड, बट जरूरत हो वहीं बनाओ, एक्सेस में या फिर कुछ, हर जगह हाईवे नहीं चाहिए होता ना। अब प्राकृतिक चीज में हाईवे कर क्या करोगे तुम? उसको ज्यादा छिड़कानी मत करो ही मीटर से। हाईवे के लिए अब क्या करोगे? विल पुट सम वाइब्रेटर इन द, यू कैन से, माउंटेन। आप उसको पहले हिलाओगे पत्थर, पूरे माउंटेन को, फिर पत्थर निकलेगा ना, फिर पत्थर निकलेगा। और वो हिलाओगे तो सिर्फ ये पत्थर नहीं हिलेगा, उसके ऊपर वाला पत्थर भी हिलेगा वाइब्रेटर से। और वो हिलेगा तो आपने अभी तो ये निकाल लिया, ऊपर वाला पत्थर हिला हुआ है। जब 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 कभी फ्यूचर में फ्लड, कैन से हाई रेन होगा या अर्थक्वेक आएगा तो क्या होगा? जो पत्थर हिला हुआ है वो जल्दी गिरेगा। Yes, sir. तो फिर जो उसकी नेचुरल जो पैकिंग है, जो भगवान ने दी प्राकृतिक पैकिंग है, उसके आसपास वुड्स हैं, सॉरी ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, मिट्टी है, जो उसकी कंपोजिशन से इंटैक्ट है, वो उसमें वो ताकत नहीं रहेगी। तो इन दैट केस इन फ्यूचर यू कैन से अर्थक्वेक, और यू कैन से हाई हाई रेन्स, और यू कैन से फ्लड रेन्स, वो ऑटोमेटिकली जो डैमेज का इम्पैक्ट होगा वो इतना 3x 4x होगा। दैट इज इट। तो इसलिए, एंड सबसे बड़ा जो कंसेप्ट, जो आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीबॉडी, जो कंसेप्ट है, क्योंकि हर कंजम्पशन के पैटर्न के पीछे कौन है? हर सर चीज के ह्यूमन बीइंग। पैटर्न के पीछे कौन है, बताओ। अगर हमारा बैलेंस, जो प्राकृतिक बैलेंस है, डिस्टर्ब हो रहा है, तो क्या हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है? सर हमारी वजह हमारी से। वजह से, हम्म। क्योंकि सर हमारी रिक्वायरमेंट है ना चीजों की, तो हम अपने रिक्वायरमेंट के लिए प्रकृति को हार्म कर, मतलब नेचर को हार्म कर रहे हैं। हाँ हाँ, ठीक है। जैसे कि हमें सेमीकंडक्टर चाहिए, तो हाँ। सेमीकंडक्टर के लिए हमें सिलिका चाहिए। सिलिका के लिए हमें मुझे माउंटेन्स की जो रेत होती है, हम्म। तो वो चाहिए, तो उसके लिए फ्रेश वाटर चाहिए। तो हम चाहते हैं कि हम लद्दाख और ये पहाड़ों के ऊपर, माउंटेन्स के ऊपर हम फैक्ट्री खोले, वहाँ सेमीकंडक्टर की फैक्ट्रीज लगाए, तो ये हम्म। हमें बेनिफिट मिलेगा। लेकिन उसके रिजल्ट में जो केमिकल्स निकलेंगे उससे इन्वायरमेंट और इफेक्ट करेगा। जो सबसे बड़ा वो जो क्या बोलते हैं, जो रूट कोज है, दैट इज ह्यूमन पॉपुलेशन का साइज।
excess of human population, overpopulation, population blast, you can say population explosion is the root cause. क्योंकि ह्यूमन की नीड तो होगी, उसको हम कम कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो नीड होना इज नॉट अ बैड थिंग, बट हमें जो काम करने की जो मेन फोकस एरिया शुड बी द गवर्नमेंट एंड ऑल ऑर्गेनाइजेशन टू रिड्यूस पॉपुलेशन, टू कंट्रोल, इन द सेंस कंट्रोल पॉपुलेशन, नॉट रिड्यूस। वो है जो पीपल डेंसिटी, जो हम 1000 स्क्वायर फीट में इतने बंदे, कल को 5 बंदे रह रहे थे, उसी में आज 15 बंदे रह रहे हैं। तो ना बिजली मिल पाएगी, ना हवा मिल पाएगी, ना पानी मिल पाएगा, और क्वालिटी ऑफ लाइफ गिरेगी, हेल्थ कंडीशन गिरेगी। तो वो जो यूरोपियन कंट्रीज में क्या है, पॉपुलेशन नहीं भाई, सबसे बड़ा अनरिटर्न चैलेंज आज के दिन ये है। और पॉपुलेशन बढ़ेगी तो सबको जगह भी चाहिए, पानी भी चाहिए, फिर पानी के लिए क्या करेगा, सप्लाई से काम नहीं चलेगा, फिर वो अंडर वाटर बोरिंग करेगा, समझ गए, ज्यादा पानी डी करेगा। तो पॉपुलेशन पे अगर कंट्रोल करते हैं तो हमारी 70 80 90% प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगी। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, यस डिफरेंट ओपिनियन। तो मतलब इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑन एक्शंस कि हम कम खपत करें, वो ठीक है, वो करते रहो, बट पहले पॉपुलेशन पे करोगे तो आपका लंबे टर्म के लिए आपको सारी चीजें ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएंगी। ठीक है, एंड नाउ कम टू, अच्छा गवर्नेंस हमने कवर कर लिया। अब बात आती है जीएचजी गैसेस की। ये काफी सारे एनिमेशंस हैं, यू कैन लुक एट इंटरनेट आल्सो, ये वन ऑफ देम है, सोर्स इज इंटरनेट, माय सोर्स आल्सो इंटरनेट ओनली। तो ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं? आई होप इन्वायरमेंट टीम, वी हैव पीपल फ्रॉम इन्वायरमेंट टीम आल्सो, एमएससी बीएससी इन्वायरमेंट और साइंस पीपल। No, सर sir. ग्रीन हाउस गैस, सॉरी, ओनली यस और नो? इन्वायरमेंटल साइंस के स्टूडेंट्स नहीं है सर, ये एमएससी आईटी सीएस बीसीए कंप्यूटर साइंस है मेनली। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज। सुना, अपनी टीवी पे सुना है। तो the ये, increased level of methane and other harmful gases. हाँ हाँ This is called a greenhouse effect, हाँ, like methane, ग्रीन हाउस carbon गैसेस dioxide. वो गैसेस हैं जो सूर्य की किरणों से विच hampers the flow of harmful sun rays to the earth. In case this gases volume increases, the more number of ultraviolet rays or high harmful gases reach to the environment, that will disturb the complete cycle. ये 3 कैटेगरी में होती है, स्कोप 1 2 एंड 3। स्कोप 1 और 2 है हम विद इन द कंपनी, या विद इन द कंपनी डजंट मीन कंपनी ओनली, यू कैन कंपनी कैन बी यूनिवर्सिटी आल्सो। यूनिवर्सिटी के अंदर आप कितनी कितनी एनर्जी कंजप्शन कर रहे हैं। स्कोप 2 है हम यूनिवर्सिटी के बाद बाय बर्न, एंड देन हम कितनी एनर्जी बाय कर रहे हैं। स्कोप 3 है हम यूनिवर्सिटी से पहले, यूनिवर्सिटी के बाद। यूनिवर्सिटी मान लो ईंटें लगती हैं, हम उस ईंटों को बनाने के लिए भट्ठे में कितना फ्यूल जला है वो। और ईंट लगने के बाद यूनिवर्सिटी ने जो प्रोडक्ट निकाला है, यूनिवर्सिटी की बस चलती है, वो उस बस से कितनी इलेक्ट्रिक बस है या कैसी बस है, वो हाउ मच दैट CO2 इमिशंस। तो वो मतलब स्कोप 1 इज विद इन द कैंप बाउंड्रीज, जो अपनी बाउंड्रीज है उसके अंदर। स्कोप 2 इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी विच विल बाय। स्कोप 3 इज बिफोर द यूनिवर्सिटी एंड आफ्टर द यूनिवर्सिटी। ऐसा है, ये 3 कैटेगरी हैं। यू कैन से उसमें आपको हर मतलब हर ओवरऑल कंसेप्ट इज दिस, आपको एंड टू एंड आपको गैसेज रिडक्शन, प्लास्टिक रिडक्शन ये कम करना है, कंजम्पशन रिडक्शन सब कम करना है। अब ये है एक कैलकुलेटर है जिसके बेसिस पे हमने फार्मूलेज है, साइंटिफिक फार्मूलेज है, जिनके बेस पे हमें हर कंपनी का, हर यूनिवर्सिटी का क्या गैस रिलीज कर रहा है, वो कैसे रिलीज कर रहा है, कैसे कैलकुलेट करना है। ग्लोबल लेवल पे इसको बोलते हैं GHG प्रिंसिपल्स के नाम से, सिद्धांत, जैसे अपना पाइथागोरस थ्योरम है, ऐसे ही एक ये सिद्धांत है। और ग्लोबली इसको वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट बनाता है, और उसको वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट की प्रिंसिपल्स को इंडिया के अंदर हमारा ये CI फॉलो करती है। टेरी एक इंस्टीट्यूट है जो इन्वायरमेंट पे काम करता है, वो फॉलो करता है, वो उसको प्रमोट करता है। फर्दर सिद्धांतों को हमारे इंडिया के अंदर प्रमोट किया जाता है कि आपको ऐसे नापना है, ऐसे कैलकुलेट करना है, ऐसे रिपोर्ट करना है। नाउ कम टू स्कोप 1 इज, हाँ ये इसका डिफरेंट एक लैंग्वेज आ गई उसकी, इसी चीज का एग्जांपल है। स्कोप 1 इज व्हाट वी बाय, स्कोप 2 इज व्हाट वी बर्न, एंड स्कोप 3 इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल, मतलब आउट ऑफ आवर बाउंड्रीज।
Scope 1 is direct emission, scope 2 is electricity and indirect emissions, and scope 3 is other indirect emissions. हमारी कंपनी से पहले, हमारी कंपनी के बाद। जैसे गाड़ी केस में गाड़ी कितना धुआं छोड़ती है, दैट विल कम इन स्कोप 3 ऑफ द मारुति पीपल, राइट। गाड़ी बेच दी ना, वो प्रोडक्शन में नहीं जी काउंट करेगी। तो छोड़ा हुआ धुआं जो वाइल यूजेस, दैट कम अंडर स्कोप 3 ऑफ मारुति। जो बनाने के टाइम पे जो धुआं कंपनी ने निकाला है, या कुछ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुआ है, वो दैट कम इन स्कोप 1 एंड 2। जो बनाना है, जो अपनी सीट को गर्म किया है, केमिकल गर्म किया है, जोड़ा है, वेल्डिंग किया है, वो सब उसमें आता है। जी सर। एंड उसके बाद डिफरेंट एनिमेशन से मैंने डिफरेंट डिफरेंट कॉपी कर उठाया सोर्स, ताकि यू कैन डिफरेंट, या किसी को टेक्स्ट समझ आता है, किसी को एक फोटो समझ आता है, ऐसा। हम्म, अब आता है रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। जिस 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 रिपोर्टिंग फ्रेम आपको यूज करना है, अगर आपके सिर्फ ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन की बात करनी है, तो स्टेक होल्डर को जितना है, तो जीआरआई इज द बेस्ट। जीआरआई इज लाइक अ सीबीएसई ऑफ, यू कैन से, schooling. Like there can be different boards, but CBSE is, I think, one of the mature board in at least in Indian context, which covers, which have a good syllabus, curriculum, exam pattern, एक balance रहता है। ऐसा ही GRI मेथड है ये। रिपोर्ट आपकी, यू कैन रिपोर्ट इन whatever framework you choose, you find it fit to your business। इसका डिटेलिंग है, किसका क्या फायदा है, क्या नुकसान है, यू कैन रीड दैट पार्ट। किस में इन्वेस्टर, किस किस कंपनी में कौन सा बेटर रहेगा, मैन्युफैक्चरिंग के लिए कौन सा रहेगा, फाइनेंस के लिए कौन सा रहेगा, सेस भी रहेगा फाइनेंस के लिए, कवरेज क्या रहेगा, इंडिया में ज़्यादा डिमांडिंग है, बाहर ज़्यादा डिमांडिंग है। TCFD करके टास्क फॉर क्लाइमेट चेंज डिस्क्लोजर, फाइनेंशियल डिस्क्लोजर, ये फाइनेंस के लिए ज़्यादा रहता है। मेनली एप्लीकेबल इन यूके, जापान, यूरोपियन यूनियन। CDP कनाडा में ज़्यादा यूज होता है, कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट। रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अब रिपोर्टिंग के बाद आता है, अच्छा ये एक समरी है उसी चीज़ की, कौन सा बेटर रहेगा, कौन सा ठीक है, किस में ज़्यादा फोकस दिया गया है, किस में ज़्यादा किया गया है, किस गाइडलाइन फॉलो की गई है। जैसे थ्योरी है, आपको भी पढ़ लेनी। एंड अब आती बात यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल्स। संयुक्त राष्ट्र संघ का नाम सुना आपने? जी सर। ये वो है। Yes, sir. हम्म ये ग्लोबल लेवल पे एक एजेंसी है, कि जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के अंदर एक कॉमन जो कोल रिक्वायरमेंट आती है, जैसे एक संघ है एक तरह से, ये समझ लीजिए, जो कॉमन गोल के लिए काम करता है, हर कंपनी को कन्विंस करता है, कॉमन प्लेटफॉर्म पे लेके आता है, कि अगर कोई चीज ग्लोबली, वो कहते हैं ना, वासुदेव, है ना, कुटुंबकम। कुटुंब, वर्ल्ड इज ए कुटुंबकम। कम्युनिटी। अगर हम्म। एज ए कम्युनिटी लेवल पे हमने कुछ करना है, तो विल गाइड अस, विल हैव सिंक कॉल, विल अलाइन एवरी कंट्री, पता लगे हर कंट्री उसमें जा रहा है, डायरेक्शन में जा रहा है। दैट पार्ट शुड नॉट बी covered in that manner. So for that alignment, for that sync call, for that standardization, for uniformity, for you can say comparison, for assessment, this will work. इसने 17 गोल डिसाइड किए हैं, कि इन 17 गोल पे हमें काम करना है। एंड अगर हम इन पे काम करते हैं, तो ओवरऑल हमारी जो प्रोस्पेरिटी है, जो दुनिया है, जो अर्थ है, दैट विल वर्क ऑन ए गुड गुड पोजिशन, और एक बैलेंस ग्रोथ रहेगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ फाइनेंशियली हम बढ़ते जा रहे हैं, पता लगे गरीब गरीब हो रहे हैं और अमीर अमीर हो रहे हैं, पता लगे हम डेवलप तो हो रहे हैं, लेकिन हमारा इन्वायरमेंट बहुत हार्मफुल हो रहा है, वो सब। ये 17 गोल है। हर गोल का एक प्रॉपर एक एजेंडा है। कैसे आप इसकी साइड पे जाओगे, तो यू विल गेट डिफरेंट पिक्चर्स, डिफरेंट, और हर गोल में क्या करना है और क्या मेजर करना है, उसके लिए मेजर करने के लिए हमें क्या, सॉरी, इंप्रूव करने के लिए हमें क्या एक्शन लेना है, वो भी कवर्ड इसमें। पहले तो करना क्या है, एम क्या है, लाइक फर्स्ट एग्जांपल, नो पॉवर्टी। नो पॉवर्टी के लिए हमें करना क्या है? नो पॉवर्टी जो UNSDG तो अभी आया है, क्या बोलते हैं अपना, 2000 के बाद आया है, आई डोंट 15 रिमेम्बर, में। 15 में आया, हाँ। बट हमारे जो, 15 to 30 के लिए। हाँ हाँ, वो ना लाइटर नोट, हमारे जो नेता लोग हैं, हमारे जो पॉलिटिशियन हैं, वो कब से गरीबी हटा रहे हैं? हम्म। जब से वो पैदा हुए, जब से गरीबी हटा रहे हैं। तो यूएन के जो गोल ज्यादा एडवांस है, हमारे गोल ज्यादा एडवांस है, हमारे नेता ज्यादा एडवांस है।
गॉट इट? हम लोग ऑलरेडी इस टारगेट पे काम कर रहे हैं, हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, एवरी पॉलिटिशियन, एवरी पार्टी इज डूइंग एक्शन टू रिड्यूस पॉवर्टी, मीन्स वी आर हेड अबव दैट यूएन एसडीजीज। सेकंड इज जीरो हंगर। दुनिया में कोई भी इंसान भूख से नहीं मरना चाहिए, ये बेसिक गोल्स है। तो यू कैन रीड दिस वर्ड, वेरी बेसिक। कोई डाउट है इनमें से? सेकंड इज जीरो हंगर, मीन्स जीरो पॉवर्टी, नोबडी शुड डाई बाय हंगर। थर्ड इज गुड हेल्थ एंड वेलबींग, मीन्स एवरीबडी शुड हैव बेसिक एक्सेस टू द हेल्थ कंडीशन, एटलीस्ट बेसिक तो हो। हाउ टू लिव, व्हाट टू लिव, वेयर टू, व्हाट टू क्लीन, व्हाट नॉट टू क्लीन, हाउ टू मेंटेन गुड टेम्परेचर, गुड है एटलीस्ट बेसिक विटामिन एंड ऑल स्ट्रक्चर। फोर्थ इज एजुकेशन। जितने भी कंपनीज के सीएसआर है, मोस्टली इनके अराउंड दे रिवॉल्व अराउंड दीज 17 goals. Some people choose 1 and 3, some people choose 1 and 5, some people choose 7 and 8, some people choose 12 and 14, ऐसा। कोई भी आपका 3-4 गोल चूज करते हैं कि वी विल वर्क ऑन दिस टू इम्प्रूव दिस काइंड ऑफ क्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी है, क्लीन सैनिटेशन एंड क्लीन वाटर सैनिटेशन है। सेवंथ इज जो इन्वायरमेंट की कंपनियां हैं, जो रिन्यूएबल एनर्जी कंपनियां हैं, दे विल वर्क ऑन सेवंथ गोल, 7 अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी। दे विल इंश्योर दैट दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ अफोर्डेबल, मतलब हर एक की पहुंच तक होनी चाहिए। अगर हमारी पावर कॉस्ट 200 रुपये होगी तो कोई मतलब नहीं है इसको पावर पैदा करने का। उसके बाद जो पावर का सोर्स है, दैट शुड नॉट बी फॉसिल फ्यूल, दैट शुड बी रिन्यूएबल एनर्जी। तो इट्स डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ सब। So these are 17 goals which are key parameters we have to work upon and known by the UN SDGs goals. अब तो even our politician now use this kind of term, हमें UN SDG गोल पे काम करना है। मोदी जी के आने के बाद काफी चेंजेस हुआ है। Earlier world was going in some other directions and we were going in different directions. हमें सस्टेनेबिलिटी की बात होती है, हमें आई थिंक 15 अगस्त को बात हुआ कि वी हैव इंश्योर्ड गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, राइट? कुछ ऐसा स्टेटमेंट था ना मोदी जी का। हमें अच्छी और सस्ता, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है, देन वी कैन गो फॉर ए वर्ल्ड पावर, सुपर पावर। तो ये वर्ड जो सुनते हैं अभी अच्छे वर्ड्स आ गए हैं इनके स्पीचेस में, काफी इंप्रूव हुआ। दीज आर 17 गोल्स। अब आता है, हमने रिपोर्ट दे दी कंपनी ने कि हम ये 5 काम कर रहे हैं, हमारा ये प्रोग्रेस है इन टर्म्स ऑफ एवरी गोल्स, एवरी ई और एस और जी। उसके बाद जो कंपनी हमें रेट करती है, जो हमारे प्रोसेस को समझती हैं, मार्केट वाले समझते हैं, मार्केट में हमारी न्यूज़ देखती हैं, हमारे गूगल पे सर्च करते हैं कि इस कंपनी की इस नाम से कितनी कंप्लेन्स हैं, कंज्यूमर फोरम में बात करती है, उसको वैलिडेट करती है कि हमने बोल दिया हमारी जीरो कंप्लेन है, कस्टमर कंप्लेन, बट वो वैलिडेट करेंगी कंज्यूमर फोरम, कंज्यूमर कोर्ट, कितने केस चल रहे हैं इनके अगेंस्ट। दे विल सी न्यूज पेपर्स, मीडिया, इंटरनेट, एंड दे विल गो टू द सोसाइटी, दे विल आस्क पीपल दैट आपको इस कंपनी से कोई दिक्कत तो नहीं है क्या? ये कंपनी गैस छोड़ती है क्या? ये कंपनी पानी पोल्यूट करती है? दिस काइंड ऑफ बेसिक इंट्रैक्शन सेशंस आर देयर। So these are the agencies which rate us in terms of sustainability or ESG scores. Either we are 70% or 80% or 90%. इसमें कुछ इंडियंस हैं, वो बाहर की भी हैं। ये रेटिंग एजेंसीज, इनके बारे में डिटेलिंग है। कोई कोई रेटिंग करता है स्कोर में, कोई परसेंटेज में, कोई जैसे अपना नेक रेटिंग अपना करता है ना, A+B+C, ऐसा ही MS मॉर्गन स्टैनले, सी मॉर्गन स्टैनले, सी का कुछ वर्ड है, CLL लिमिटेड। तो they rate in terms of AAC, BBBC or CCC. In terms of some Morningstar Sustainalytics, they work in percentage. Some people give an indicator like 700 indicators. हर एक का अपना evaluation पैटर्न है, स्कोरिंग पैटर्न है। तो मोस्टली इसमें पहली जो 5 है वही यूज होती है, बाकी तो बहुत कम यूज होते हैं। ये डोन डो जोन सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स है, इसमें हर सेक्टर की बेस्ट, ये सर्वे निकालते हैं हर कंपनी का कि यार इस सेक्टर में आप बेस्ट हो, इस सेक्टर में आप थर्ड हो, ओवरऑल वर्ल्ड में आप थर्ड हो, इंडिया में आप थर्ड हो, या पर्टिकुलर आपके सेक्टर में आप फोर्थ हो, ऐसा कुछ रैंकिंग के साथ निकालते हैं। दीज आर सिंपल, ये इंडियन एजेंसीज हैं, सीरिसिल, IRCA, केयर ESG रेटिंग्स, फिच ग्रुप, SBI भी निकालता है फाइनेंस कंपनीज के लिए। आई थिंक किसी ने टिक कर रखा है ये स्क्रीन के ऊपर, आपकी टीम, आपकी साइड से। सर ये पहले ही कर दिया था ना?
हाँ, ये शायद रब नहीं हुआ, अभी चल रहा है। हम्म, ठीक है। ये इनके स्केल्स हैं, कोई स्कोर में करता है, कोई रेटिंग A+B में करता है, ये हो गया। एंड अब बात आती है, सब कुछ कहानी आपने पढ़ ली, आपने रेटिंग सॉरी एक्शंस ले लिए, रिपोर्टिंग कर दी, रिपोर्टिंग के बाद रेटिंग होगी, रेटिंग के बाद आपको मान लो कुछ करना, अभी बोलोगे आप करना क्या है। तो ये कुछ बेसिक आइटम मैंने लिस्ट अप किए जो आप लोग कर सकते हैं, जो हम लोग कर सकते हैं, जो कॉमन मैन। इसके लिए आपको बेसिक उसकी जरूरत नहीं है कि आपको यूनिट सम क्वालिफिकेशन, यू हैव टू बी पार्ट ऑफ सम कंपनी, लाइक डेवलप जीरो पॉलिथीन एंड प्लास्टिक campus in school, college, and universities. Slowly, we should move from thermal power source to renewable power source. Energy efficient buildings, home devices, save water, promote rainwater harvesting, reduce। बाद में आप किसी कैटेगरी में डाल दो इनको, ई में डालो, एस में डालो, जी में डालो, दैट इज डिफरेंट, बट आपको ये बेसिक 10 आइटम्स हैं, अगर आप फॉलो करोगे तो यू विल बी गुड सिटीजन टू द नेशन और द वर्ल्ड। रिड्यूस मेटेरियल वेस्टेजेस, इनपुट मेटेरियल रिडक्शन, पैकेजिंग रिडक्शन। हम अपने त्योहार हैं, आज ऑन डेट मैं पर्सनली प्रमोट करता हूँ कि त्योहार हमारे बहुत सस्टेनेबल हो, क्योंकि हर त्योहार पे हम इतना कूड़ा फेंकते हैं, इतना कूड़ा फेंकते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं नाम किसी कम्युनिटी या किसी को अटैक नहीं कर रहा हूँ, हर कंपनी में ये, हर कम्युनिटी में यही हाल है। Our all festivals has become a big, you can say, waste generation sources. So we should improve our services, our actions। हमारे जो हरकतें हैं इंसान की, वो सुधारनी पड़ेंगी हमें, सोसाइटी को साथ लेके चलना है। एंड सेकंड इज प्रमोट रिड्यूस रीयूज रिसाइकल प्रिंसिपल्स। रिड्यूस करो, रीयूज करो, रिसाइकिल करो जितना हो सके। आरओ के पानी को एग्जांपल हम यूज करते हैं, गार्डनिंग यूज कर लेते हैं, कम से कम एटलीस्ट 2 बाल्टी पर डे बचाएंगे, कितना पानी बचेगा। yes sir। रिड्यूस पोल्यूशन, एक्शन फॉर क्लीनर एयर, जीरो पोल्यूशन एक्टिविटीज, प्रमोट सोसाइटी अपलिफ्टमेंट बाय एजुकेशन, बेसिक कम्युनिटी, जैसे हम अभी कर रहे हैं। आई एम नॉट वर्किंग फॉर द मनी, आई एम वर्किंग फॉर द सोसाइटी, एटलीस्ट यू गाइस नो सोसाइटी में चल क्या रहे हैं। right sir। बेसिक क्लीन हेल्थ, नेचर, टाइमली मेडिकल चेकअप्स, क्लीनर वाटर। अगर कोई डॉक्टर हो तो उसको ही शुड एटलीस्ट वंस ए मंथ एक स्पेंड हाफ डे स्पेंड करे सोसाइटी में जाके, डेंटल चेकअप करे, हेल्थ चेकअप करे, जिससे जितना उसके करते चलो, ऐसा है। उसके बाद एक बेसिक रूल हमारा जो इंडियंस का बहुत ही मतलब डिटरेस्ट हो चुका है कि सिविल सिटीजन, सिविक सेंस। एक आप अच्छी पार्किंग भी अच्छे से करोगे तभी आपका, तो देन यू आर आल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू नेशन। ट्रैफिक लाइट्स फॉलो करो। आज के दिन तो हम इंटरनेट का तो समझो कि 6 से 7% ही बंदे यूज अच्छे से यूज करते हैं, सब मिस यूज फॉलो, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन हम फॉलो करें, हम पढ़ते पैसे पहले फॉरवर्ड कर लेते हैं। आप आईटी तो आपको, यू नो पीपल बेटर, मुझे बताते हैं शुरू में, मैं आईटी कंटेक्स में दिमाग करके ज्यादा बताता आपको। आई वाज थिंकिंग कि मिक्स पार्टिसिपेंट्स आर मिक्स फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट, यू कैन से ऑल स्ट्रीम्स एंड ऑल। तो आईटी इज द मेन की टूल फॉर द ड्राइवर्स। आईटी आपका पर्सपेक्टिव चेंज कर देती है अगर आप रॉन्ग कंटेंट फॉलो करते हैं, तो रॉन्ग कंटेंट करते हैं, मिस यूज प्रमोट करते हैं। एक सिंपल सा लॉ है, अगर गवर्नमेंट बनाती है तो, आउट ऑफ द सिलेबस है आपके ट्रेनिंग से, अगर इनकेस आप कोई फोटो अपलोड करते हो एनी सोशल मीडिया साइट्स, दैट फोटो शुड हैव जियो, यू कैन से जियो टैगिंग, डेट ऑफ क्लिकिंग, एंड अगेन दैट वाइल अपलोडिंग ऑन द राइट हैंड साइड लेफ्ट में तो वो हो अपना फोटो किस दिन खींचा, कब खींचा, कहाँ पे खींचा, और राइट में जब अपलोड की डेट आनी चाहिए। तो अगर गवर्नमेंट मान लो कल को रूल निकाल देती है कि ऑल सोशल मीडिया साइट्स should have this rule, whatever photo you upload should have date in the left bottom corner of clicking and right bottom corner is the date of uploading corner। तो कितनी इंफॉर्मेशन, कितनी गलत इंफॉर्मेशन हमारे से नेट से साफ हो जाएंगी, कितनी छोटे से रूल से। कोई है मेरे साथ जो डिसएग्री हो रहा हो या कुछ? एग्री है सर। सर पर उस डेट को वैसे भी हम चेंज कर सकते हैं। हम्म। ये सारी डेटा, मेटा डेटा जो होता है इमेजेस का, वो हम चेंज कर सकते हैं। हाँ, चेंज कर सकते हैं ना, एटलीस्ट आने तो दो, कुछ हद तक तो आने दो, मैं चेंज तो सब कुछ हो जाएगा। एक एटलीस्ट फर्स्ट, कम से कम जो चेंज करेगा वो पढ़ा लिखा होगा ना, समझा नहीं? जो चीज बाय डिफॉल्ट आई है
वो उस बंदे के हाथ में, क्योंकि मोबाइल ऐसी जगह है कहाँ कहाँ पहुंच गया है, उसको नहीं पता कि तुम्हारे मैसेज फॉरवर्ड करने से क्या पता कहीं दंगे हो सकते हैं, क्या पता कहीं मिस इन्फॉर्मेशन से भगदड़ मच जाए। एटलीस्ट 50-60% तो कवर होगा। हाँ, मेजोरिटी हाँ कवर हो तो फिर जाएगा सर मेजोरिटी शायद। तो वॉल्यूम है ना, जिस बंदे को आप लोग पढ़े हो, आप लोग एमएससी हो या बीएससी हो या एमबीए हो आईटी हो, तो आपको पता है कि दिस आईटी इज वेरी यू कैन से स्ट्रॉन्ग टूल। इट कैन, आपको इम्पैक्ट पता है उसका, गलत काम करें तो ये इम्पैक्ट हो जाएगा। पर जिसको नहीं पता उसके लिए तो कम से कम हो, उसके लिए सिस्टमेटिक सिस्टम बनाओ कि एटलीस्ट उसने फोटो कब खींची है। अब वो क्या करते हैं, 2000 एग्जांपल दे रहा हूँ, 2020 के दंगों की फोटो आज आज अपलोड कर देंगे और पता लगे आज वायरल होगी, पूरा देश उसके पीछे पागल हो गया, शाम को पता लगा कि इस फोटो पुरानी थी। फिर हाँ सर, ये ट्विटर पे एक नया फीचर वैसे भी रोल आउट हो चुका है अभी। कोई अगर हम्म, आप पुरानी वीडियो डालते हो तो हाँ, वो ट्विटर नीचे उसको टाइमलाइन दे देता है कि ये अब इस टाइम का फोटो है, करंट का हम्म, नहीं है। तो वो उसके मतलब बाय सिस्टम, मेरा एक जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल, देयर कैन बी एन नंबर, तो लुक इन दैट पर्सपेक्टिव कि हाउ वी कैन इंप्रूव आवर सिस्टम्स। अभी क्या है, मोबाइल इज लाइक ए फ्री स्टैंड गन, सबके पास पहुंच गया है, लेकिन चलाना किसी किसी को आता है। मैं थोड़ा ब्लंट बोलता हूँ, वो सस्ता स्टैंड गन हो गया है, सबके पास पहुंच गया है, सबके पास हथियार हो, और चलाना किसी को नहीं है, बहुत कम लोगों को आता है, तो क्या होगा, सोसाइटी में क्योस क्रिएट होगा ना। यही हालत मोबाइल की है। अब रोड पे आप निकलोगे तो जो यूजर है उसको ईयरफोन लगा के रोड पे चल रहा है, जैसे अपने बेडरूम में बैठा है। अब क्या करोगे उसको आप? बचता कौन है? गाड़ी वाला बचता है कि भाई किसी तरह हम बच के निकले इससे। तो मिसयूज ही है ना उस चीज का। रोड पे वीडियो बनाना, रोड पे आप हेडफोन लगा के चल रहे हो, यू आर थ्रेट टू योर सेल्फ एज वेल एज द एंड यूजर ऑफ द रोड। तो वो चीजें हैं, एक बेसिक सिविक सेंस इज गुड, मतलब वो एक पहला इनपुट है बेसिक। हमेशा रूल फॉलो करने का जज्बा तुम्हारे अंदर आप यंग हो, आप फ्यूचर जनरेशन हो, तो हमेशा होना चाहिए। नेट अच्छी है, मोबाइल अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन उसको आप यूज कैसे करते हैं इज मोर इम्पोर्टेंट। बहुत बार आदमी मोबाइल देखते 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 तो आपको गड्ढे में गिर जाता है। मोबाइल जब देखो तो आपकी टांगे एक जगह पे टिकी हो या बैठे हो, दैट्स ऑल, सिंपल प्रिंसिपल है। आप चलते चलते मोबाइल देख रहे हो ये। और आप बताऊंगा, आप ट्रैफिक में आप निकलो, आप सर्वे करो, आप कभी देखोगे तो आप, आउट ऑफ 10 पीपल यू स्टैंड ऑन ए चौक, और यू कैन से आई डोंट नो व्हाट आर यू कॉल्ड इट इन उत्तराखंड लैंग्वेज, चौक, चौक को आप लोग क्या बोलते हो? चौक ही बोलते हो ना शायद, जो स्क्वायर ऑन द रोड, फोर, चौके बोलते हैं सर, चौक चौकी बोलते हैं बोलते ना, हैं। हाँ। हाँ तो उस पर आप खड़े हो गए, आप 10 मिनट नॉर्मल एक सर्वे करो, 20 मिनट सर्वे करो, सैंपल देखो कितने व्हीकल गए, कितने टू व्हीलर, कितने वन टू फोर व्हीलर गए, उसमें से कितने बंदे आपने अपने मोबाइल पे लगे हुए मिलने। डाटा इज विद यू ओनली। और कोई तो ऐसे हैं, एक हाथ में बच्चा, एक हाथ में मोबाइल ऐसे, हाँ, और एक चलते मतलब मोबाइल एक हाथ में, एक ऐसे बाइक का, एक हाथ से बाइक चला रहा है, एक हाथ से फोन लगा पड़ा है, पीछे छोटा बच्चा बैठा है, उसकी वाइफ बैठी है, मतलब इफ यू डोंट रिस्पेक्ट योर लाइफ नो बॉडी विल टेक केयर ऑफ यू भाई, सिंपल। तुम्हें अपनी जिंदगी की कदर नहीं है कि तुम्हारी जिंदगी एक लाइफ है, इंपॉर्टेंट है, गॉड हैज गिवन यू गुड लाइफ एज ए ह्यूमन बीइंग, नॉट इन टर्म्स ऑफ एनिमल और ए बर्ड और ए कैन से डॉग, बट स्टिल यू आर मिसयूजिंग दैट पार्ट एंड यू एक्सपेक्ट कि सामने वाला बंदा तुम्हें बचाएगा, तो कैसे बचाओगे? वो दैट काइंड ऑफ सिविक सेंस। ए गुड सिविक सेंस इज सस्टेनेबल सेंस, लिखा है मैंने, सस्टेनेबिलिटी इज ए सिविक सेंस, दैट्स ऑल। तो वो बेसिक है। आप घर से निकल रहे हो, आप एक बोतल पानी की घर से, फ्रिज बोतल से जो भी है गाड़ी में लेके चलो, बाइक पे लेके चलो, बैग लेके चलो, आपको जरूरत ही नहीं रास्ते में बिस्लरी बाय करने की, एटलीस्ट फर्स्ट बोतल तो आप बचा पाए। ठीक है, सेकंड आपने ले लिया, एटलीस्ट एक बोतल तो बच गई। साल की अगर मान लो 20 बोतल आपने पेट बचा लिया, 20 बोतल प्लास्टिक, तो कितना प्लास्टिक बचेगा? आजकल हर शहर में एक वेस्ट का पहाड़ बनता जा रहा है, हर शहर। नॉट ओनली मेट्रोज, मेट्रोज का तो बुरा ही हाल है। आप छोटे शहर में देखोगे तो शहर के किसी कोने या बाईपास के ऊपर एक आपको डंप यार्ड मिलेगा। जितने अपने ये ड्रेनेज चौक्स होते हैं, 70-80%, 50% मिट्टी से होती है, 50% आपकी पॉलिथीन प्लास्टिक इससे होती है। मिट्टी ठीक है, वी कैन नॉट कंट्रोल द पार्ट, सैंड पार्ट विल पार्ट ऑफ, बट एटलीस्ट वी कैन कंट्रोल प्लास्टिक ना। तो वो सब
बेसिक बी गुड सिटीजन। हमारा एक ही मैसेज है आपके लिए, सबके लिए आज के दिन, अपने सोसाइटी में अपने आसपास में अच्छे सिटीजन बनो। बनो आप, फिर अपने आप सोसाइटी हो जाएगी सकते हैं। हम अमेरिका से इसीलिए पीछे हैं कि हमारी सिविक सेंस बहुत कमजोर है। नहीं, हमारे पास देखो टैलेंट है, लैंड बेस है, ह्यूमन बीइंग का साइज है। वी आर आई थिंक वर्ल्ड के टॉप टॉप 3 कंज्यूमर में से हैं, एंड आई थिंक टॉप 5 प्रोड्यूसर्स में से हैं। इंसान अपने पास है, हम कंज्यूमर भी अच्छे हैं और कैन से प्रोड्यूसर भी अच्छे हैं। सिर्फ एक सेंस, एक अवेयरनेस वो जरूरी है। हम एक सिंपल, अगर अच्छे से पार्किंग करेंगे तो पूरा जो रोड से बैक का ट्रैफिक जो आ रहा होगा वो पूरा व्हीकल चलते रहेंगे। अगर गलत पार्किंग करेंगे तो पूरा व्हीकल के आई थिंक जितने भी 100-150 व्हीकल सारे रुकेंगे। वो उनकी हर व्हीकल 15 मिनट ज्यादा रुकता है तो कितना पोल्यूशन होता है, कितना पोल्यूशन होता है हर व्हीकल, अगर ढंग से मतलब नहीं चल पाता तो। दीज आर द थिंग्स। नाउ इट्स योर टर्न फॉर द क्वेश्चंस। आई थिंक टाइम कितना हो गया? सर 1:45 हो गए हैं। अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो प्लीज पूछ सकते हैं सर से, 1 by 1 प्लीज, 1 by 1। सेरीन, இவர் பண்ணி கொடுத்தாரு எனக்கு अरे यार, आई थिंक उन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं पूछना था, बाय मिस्टेक उनका माइक ऑन था। और कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? जस्ट एक मिनट, एक सिंपल सेंस देखो अभी आप हमारे वेबिनार में कितनी बार हमें आई थिंक 1 घंटे के 1.25 घंटे के अंदर कितनी बार किसको बोलना पड़ा कि प्लीज यूज दिस इंटरनेट वाइसली, दैट प्लीज अनम्यूट म्यूट योरसेल्फ। थोड़ा सा राइट ऐसी सर। छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी सेंस आपको आगे लेके जाएंगी। आप पूछो, सवाल के टाइम पे पूछो, अब कोई नहीं पूछेगा, अब उस टाइम बीच में कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं प्लीज? कोई क्वेश्चन है आप लोग की तरफ से तो पूछ सकते हैं सर से। सर ने बहुत अपना वैल्यूबल टाइम निकाला है हमारे लिए। प्लीज कुछ डाउट है तो आप प्लीज पूछिए। नितेश वर्मा, शायद आप कुछ पूछना चाहते हैं, आपने अनम्यूट किया है। Sir, I think there is no queries from our side. Thank you so much, School of CS and IT की तरफ से। दास जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? पूछना नहीं है, एक्चुअली एक चीज बताना था कि हाँ हाँ अगर मतलब माइक्स ऑन नहीं हो रहे हैं किसी टाइम मीटिंग में, ये कॉमन इंडिकेशन है कि मतलब कोई इंटरेस्टेड नहीं है या फिर कोई कुछ पूछना नहीं चाहता है या फिर पूछना नहीं, ठीक है। बट समटाइम्स ये ऐसे भी लेना चाहिए कि सेशन एक बहुत ही अच्छा इंटरैक्टिव और रिलेटेड टू पीपल, हमसे रिलेट हो पा रहा है सेशन, तो हम उसको ज्यादा अच्छे से ग्रैस्प कर पा रहे हैं। उसकी वजह से कभी कभी है ना क्वेश्चंस आते नहीं है ज्यादा। हाँ, कई बार दैट डजंट सर ने मीन कि हम बहुत इंटरेस्टेड नहीं है, बट द सेशन वाज बहुत ही रिलेटेबल सेशन था, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन था। बहुत ही छोटी छोटी चीजें जो समझनी चाहिए समझ में आई, और जो चीजों का ध्यान रखना चाहिए पता चला। सर के एग्जांपल्स बहुत ही रियल लाइफ एग्जांपल्स थे, कोई मतलब इधर उधर से एग्जांपल नहीं थे। सर का एक्सपीरियंस इसी से पता चल, उनके एग्जांपल से ही सर का नॉलेज और एक्सपीरियंस पता चल रहा था, जिससे कि हम रिलेट कर पा रहे थे। तो बहुत ही अच्छा मतलब सेशन था, और सर का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था। थैंक यू सर। थैंक यू। सेशन सर इंटरेक्टिव था, इसीलिए मेरे को कोई क्वेश्चन में आई नहीं, मैं समझ गया। थैंक यू दास जी। सर हमारे डायरेक्टर सर हैं अभी, तो 2 शब्द वो कहेंगे आपके लिए। थैंक यू सर। अभिषेक जी, इतने शॉर्ट नोटिस पे आपने हमारी रिक्वेस्ट को माना, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। मैं उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी, अपने स्टाफ, पूरे विश्वविद्यालय और हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपको जान के खुशी होगी कि ना केवल हमारे स्टूडेंट जो कि हमारे ओडीएल के लर्नर्स हैं, बल्कि हमारे कुछ स्वयं जो प्लेटफॉर्म है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसमें भी हमारे 13 कोर्सेज चलते हैं। उसमें इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल फॉरेंसिक का जो कोर्स है, उसके पार्टिसिपेंट्स भी इसमें पार्टिसिपेट किए थे। तो ये लेक्चर ना केवल उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के लर्नर्स ने सुना था, बल्कि थ्रू आउट इंडिया जो हमारे, क्योंकि वो अलग अलग यूनिवर्सिटीज में एनरोल्ड हैं,
हमारे सिर्फ एक कोर्स में एनरोल्ड हैं, इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी। Right. तो वो लोग भी आपको सुन रहे थे, तो मैं उनकी तरफ से भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने शॉर्ट नोटिस में अपना कीमती समय निकाला। Thank you, sir. धन्यवाद, Thank you so बहुत much. बहुत आभार। भविष्य Thank में भी हम चाहेंगे कि आप हमसे जुड़े रहें। ठीक है, मैं Thank आपके you साथ so much, कोई sir. आईटी से रिलेटेड बंदे अरेंज करता हूँ। लेट मी कनेक्ट विद राइट पर्सन। जी सर। आपका जो स्टूडेंट का इंटरेस्ट रहेगा मेनली फोकस अराउंड सम आईटी, एआई और जी 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 जी। I'll arrange some four more sessions for you. No issues. ओके, थैंक यू सर, Okay, थैंक यू। thank Thank you. you, sir. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू एवरीवन। प्लीज अपना रिस्पॉन्ड दे सकते हैं आप चैट बॉक्स में। आपके लिए ये सेशन कैसा रहा उसके लिए आप चैट बॉक्स में अपने कमेंट दे सकते हैं, हम और इम्प्रूव करेंगे इस सेशन को। आप एक कमेंट फीडबैक जरूर दें इन कमेंट सेशन प्लीज। उसके बाद आप इस सेशन को ऑफ करके जा सकते हैं, प्लीज लीव कर सकते हैं और अपना जो भी फीडबैक है वो चैट बॉक्स में प्लीज लिखते हैं। Thank you everyone for this session, for joining this session. Thank you.